आई थिंक मैं पहला बंदा था लिंक्डइन पे जिसने इन चीज़ों के बारे में लिखना स्टार्ट किया था, दैट ओके 10 entrepreneurship lessons from Suits. The first post went viral like 7 lakh views. I'm like, ये क्या हो रहा है? अब पता लगा कि ये ना 1-2 करोड़ का गेम नहीं है, ये 100 करोड़ का गेम है, जो कि मेरे पास नहीं है. Then I spoke to someone who was a very big purchase manager in one of those clients companies. And said, सर अगर मैं आपके जैसा काम करूँगा तो 25 साल में क्या होगा? अगर मैं आपकी जगह पहुँच गया तो he said, देख मेरी जगह तो 12 साल में पहुँच जाएगा. You are smarter than me. 3 करोड़ सैलरी हो जाएगा तेरे लेवल पे. जब तू 10 साल 12 साल आगे होगा तो मेरा 1.5-2 करोड़ के आसपास है, तेरा 3-3.5 करोड़ होगा. गाड़ी होगी, बीवी बच्चे होंगे, बट उनके लिए टाइम नहीं होगा. ओके. एंड दैट वाज अ किक. आई सेड पैसे से ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट है. अगर ये आदमी के लिए भी टाइम इंपॉर्टेंट है जिसके पास नहीं है. अगेन जो आपने मुझसे पूछा था कि कोर्सेज खरीदने से कुछ होता है क्या, मैं कह रहा हूँ आज की डेट में आपको प्रैक्टिकली तो कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है. आपको इंस्टाग्राम सीखना है तो इंस्टाग्राम का अपना कोर्स है. सो लेट्स से आप किसी फैमिली गैदरिंग में हो तो वहाँ पे 4 कजन्स हैं. अभी कोई मामा जी आएंगे, पूछेंगे बेटा क्या कर रहे हो. एक बोलेगा आई एम अ वीपी इन सो एंड सो कंपनी. वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया बात है, राइट. और मुझसे पूछेंगे हाँ मेरी एजेंसी है, मार्केटिंग एजेंसी. वो क्या होता है? सवाल पे स्टार्ट होता है. अच्छा करते क्या हो, है ना, कितना पैसा कमा लेते हो. भाई उससे क्यों नहीं पूछा? वो नौकरी और डेजिग्नेशन में तुम्हें क्या समझ में आ गया बताओ मुझे. लेकिन इंट्रोडक्शन वही अच्छा लगता है उन्हें. मैं गूगल में काम करता हूँ तो बहुत अच्छा है, राइट. बट भाई मैं एजेंसी में, गूगल मेरा क्लाइंट है, उससे ज्यादा पैसे मुझे देता है. समझो बात को. He said growth is all about riding the waves. If you can ride a right wave, you'll grow very, very fast. And it is effortless practically. Yes. Today we have Saurabh Goyal. He's coming all the way from Chandigarh. The beauty about this person is that he helps working professionals work on their side hustle, something which they're passionate about but they are not able to do. And also, his speciality is that he has helped them scale from 0 to 7 figures. So, without any further ado, let's bring Saurabh Goyal to this podcast. Welcome to this podcast, Saurabh. Thank you, bro. Thank you so much for having me here. And Saurabh, first of all, again, आप working professional को help करते हो and you have been helping them scale from 0 to 7 figures. उसके पर जाने से पहले first I would like to know about you. आप कहाँ से हो, आप मतलब क्या करते थे पहले, and how did you ace this particular form that you want to work with working professionals and help them in doing the side hustle. What made you So I was born brought up in Faridabad, traditional middle class baniya business class family. And the entire childhood was majorly around having fun because I was the youngest kid in the home. Okay. So being dumb was a good thing for me because then I don't have to do anything. Elders will take care of everything. So you can also say like even in this middle class setup, I was a guy with a silver spoon. Okay. जिसके पास सब कुछ है. He will born demand with a silver spoon. Yeah, he will demand and he will get everything. Great. So till 10th it was like that. My entire cousins, all of them were commerce students. So I said, okay, let's make some difference. So that was only keyed in my head that I cannot do everything which is already happening. So I need to explore something new, right? So I chose science. And somebody said, okay, mechanical engineering is an evergreen industry. It will always be there. So I said, okay. And then my father was also happy because he's into lubricant oils business. So he said, mechanical we understand because we live in an industrial state. So कल को फैक्ट्री खोलना होगा या कुछ भी करना होगा तो ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, कर लेते हैं. इंजीनियरिंग हुआ तो सिनेरियो बहुत डिफरेंट था. आई गॉट एडमिशन एट Tier 2 कॉलेज करनाल में because I was a very average student, so I never cracked IIT, JEE and all. And I think वो एग्जाम से IIT के एग्जाम से पहले दिन हम फन एंड फुल वेज में मस्ती कर रहे थे सब दोस्त मिलके, राइट. बट देन आई थिंक वो स्कोर कार्ड काफी लेट आया उनका बाद में. एंड आई सॉ के आई सिर्फ मैथ्स में 2 नंबर कम थे, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्रैक कर चुका था. अच्छा. एंड दैट वाज अ लिटिल बिट ऑफ रिग्रेट. आई फेल्ट आधा घंटे के लिए कि मैंने शायद ड्रॉप करके एक बार कर लेते यार, दोबारा अच्छा रहता. आपने करा दोबारा? नहीं किया. ओके. बट आई वाज लाइक कि ठीक है अभी स्टार्ट कर दिया तो खत्म करेंगे. दैट्स अगेन अ वेरी गुड हैबिट. आई थिंक समटाइम इट फॉल्स बैक आल्सो ऑन माय हेड कि कुछ स्टार्ट किया तो खत्म करेंगे. खत्म करते करते कभी जान निकल जाते है और आउटपुट नहीं निकलता. सही बात है. दैट इज आल्सो ओके. सो 2 साल इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से काम किया. आई वाज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स विद इंडियन रेलवे एंड ऑल. सो आवर कंपनी यूज्ड टू सर्व इंडियन रेलवे दैट टाइम. एंड वो प्रोजेक्ट बहुत प्यारे थे इंजीनियरिंग के. द मार्वल्स ऑफ इंजीनियरिंग इन टर्म्स ऑफ दैट स्पेस. आई कुड क्रैक सम
गुड प्रोजेक्ट्स, फिर जेसीबी के साथ काम किया, फॉर्च्यून 40 कंपनीज वर द क्लाइंट्स, सो आई अंडरस्टूड व्हाट इज प्रोसेस, व्हाट इज अ ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस बेसिकली, कमिंग फ्रॉम अ ट्रेडिशनल अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस, आई अंडरस्टूड ओके व्हाट इट टेक्स टू बिल्ड अ ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस, एंड दैट स्कैर्ड मी। अब पता लगा कि ये ना 1-2 करोड़ का गेम नहीं है, ये 100 करोड़ का गेम है, जो कि मेरे पास नहीं है। Right, and then I spoke to someone who was a very big purchase manager in one of those clients companies, and said, sir, अगर मैं आपके जैसा काम करूंगा तो 25 साल में क्या होगा, अगर मैं आपकी जगह पहुंच गया तो। He said, देख मेरी जगह तो 12 साल में पहुंच जाएगा, you are smarter than me, 3 करोड़ सैलरी हो जाएगा तेरे लेवल पे, जब तू 10 साल 12 साल आगे होगा तो मेरा 1.5-2 करोड़ के आसपास है, तेरा 3-3.5 करोड़ होगा, गाड़ी होगी, बीवी बच्चे होंगे, बट उनके लिए टाइम नहीं होगा। Okay. And that was a kick. I said पैसे से ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट है, अगर ये आदमी के लिए भी टाइम इंपॉर्टेंट है जिसके पास नहीं है, क्योंकि वो आदमी कहता यार मैं सुबह 7 बजे जनकपुरी से निकल के मानेसर जाता हूँ प्लांट में, और रात को आता हूँ तो बच्चे सोते हुए मिलते हैं, सुबह जब मैं उठता हूँ तो वो स्कूल जा चुके होते हैं, तो मैं खाली संडे को उनसे मिलता हूँ। एंड दिस इज अ पेन पॉइंट ऑफ एवरी वर्किंग प्रोफेशनल प्रैक्टिकली, राइट। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, बट अभी 3 दिन से मैं नोएडा में हूँ, तो मैं रोज आ रहा हूँ कंटेंट शूट के लिए, राइट। अभी आज आपके पास आया हूँ, तो वो जो सुबह 8:30 बजे उठ के निकलना है ना, ट्रैफिक 1.5 घंटा, वो ना मेरे को घर में ही मेरी जान निकल चुकी होती है कि मुझे 1.5 घंटा गाड़ी चलानी है सुबह, है ना, जल्दीबाजी में नाश्ता करना है, स्ट्रेस तो सुबह सुबह ही हो जाता है लाइफ में, वो बंदा प्रोडक्टिव होगा कैसे जॉब में, करेक्ट, राइट। और शाम तक तो वो इतना स्ट्रेस हो चुका होगा कि अगर घर वालों ने कुछ भी गलत कर दिया तो वो चिल्लाएगा, बेसिकली बहुत ही गुस्से में रहता है कि उसके हिसाब से कुछ हो ही नहीं रहा है, उसके हिसाब से कुछ हो ही नहीं रहा है, he doesn't have life in control basically, right? And I said I need my life in control, that was my first thing, and I want to have my breakfast in peace. मुझे वो टोल टैक्स पे खड़े होके जल्दीबाजी में ब्रेकफास्ट नहीं करना है। आधे लोगों को देखा मैंने फरीदाबाद से गुड़गांव अप डाउन करते हुए, टोल टैक्स पे जाम लगता है ना, उस टाइम वो अपना रोल खोलते हैं, पराठा रोल, एंड कॉफी मग बीच में रखा होता है, उस टाइम वो नाश्ता कर रहे होते हैं, तो ड्राइवर चला रहा होता है, पीछे बैठ के खा रहे होते हैं। एंड देन आई स्पोक टू हिम, ही सेड सौरभ यू आर गुड एट कम्युनिकेशन एंड यू नीड अ लॉट ऑफ पॉलिशिंग, सो यू ट्राई सेल्स एंड मार्केटिंग, you will travel the world, you will meet people, the life will still be very hectic, but it's young time, you will explore the world, correct, right? सही बात है। So I started with the BPO first of all, वहाँ सैलरी 12,000 थी, लेकिन इंसेंटिव बहुत अच्छे थे, so वहाँ ना एक 12वीं क्लास का बच्चा भी 1.5-2 लाख रुपए महीना घर लेके जाता था इंश्योरेंस बेच के। एंड देन आई अंडरस्टूड पावर ऑफ सेल्स। एक फ्लोर पे 40 बच्चे बैठे हैं, कोई भी ग्रेजुएट भी पूरा नहीं है, पता है कितना रेवेन्यू कर रहे थे? कितना? उस प्रोसेस में सिर्फ उस 40 बच्चों में कुछ 4.5-5 करोड़ रुपए महीने का रेवेन्यू होता था इंश्योरेंस बेच के। भाई साहब, और ये कौन सा प्रोसेस था? ये प्रोसेस था ICICI लॉम्बार्ड का, एंड दे यूज्ड टू ओनली सेल टू अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड मेंबर्स। वाओ, HNIs, right? Our calls were picked by the likes of Priyanka Chopra, Arjun Kapoor, Bollywood actors, or the owners of Agarwal Packers and Movers like branch, maybe Birlas. Those kind of people used to pick the calls in that process, and they immediately used to transfer the call to CA because that's the CA's job. And tax season में सबसे ज्यादा sales होता था. They used to buy insurances worth of premium 30 lakh 40 lakh immediately. JFM, Jan Feb March के टाइम पे सबसे ज्यादा. It was crazy. And मैं उसी टाइम पे जॉब कर रहा था. So I understood कि सेल्स में ना आपके पास कंट्रोल, आप पैसा कितना कमाओगे. So I used to see the guy who was sitting beside me because मैं तो बहुत नया था. My only thing was कि सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग फ्री मिल जाएगा यहाँ पे BPO में, राइट. ये बंदा एक एक्सेल शीट अलग से मेंटेन करता था कि अच्छा मैंने इतना बेच दिया ये है, अब मेरे पास 10 दिन और है, मुझे ना 2 लाख और कमाना है इंसेंटिव में. वो उसके हिसाब से टारगेटिंग करता था. अच्छा, क्लोज कैसे करते थे? बिकॉज एक चीज है कि आप जानते हो, आप तो these were cold calls or these are मतलब किस टाइप के कॉल्स होते थे? These were cold calls, but because it is going to a very nice network, yes, the leads were very niche. अच्छा. And they need it all the time. So HNI जितना इंश्योरेंस खरीदते कोई नहीं खरीदता. But again पहुंचते कैसे? Because normally insurance calls are spam calls. BPO है तो डेटाबेस है. But you know what? एक चीज देखते हैं. अभी आज आपके पास कोई कॉल आती है, वो उठाएगा, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, वो ना एक स्क्रिप्ट में चालू हो जाएगा. करेक्ट. हमें ना सिखाया गया था एक बहुत प्यारी चीज. Said I am speaking from this company on behalf of that company. Can I have your 2 minutes? Is it a good time to talk? जब आप इतनी सी इज्जत दे देते हो ना किसी को, is it a good time to talk to you? या तो बोलेगा हाँ बात कर लो.
एंड यू टेल एग्जैक्ट टाइम कि आपको कितना टाइम चाहिए। तो हमारी फर्स्ट पिच को 1 मिनट चाहिए होता था। वी यूज्ड टू एक्सप्लेन, देन इफ द पर्सन सेज यस वी विल मेक देम अनदर कॉल दैट द टीम लीडर विल डू, बिकॉज कार्ड डिटेल्स लेना और फाइनेंस वाला काम हमारी अथॉरिटी नहीं थी। हमारा काम खाली पिच करना था, वो 2 मिनट लेना इनिशियली। अगर वो हमने सही कर दिया तो आगे चला जाएगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल इन कोल्ड कॉल्स मेक दैट मिस्टेक। वो पूछते नहीं सामने वाले से कि ये सही टाइम है या नहीं है। अगर नहीं है ना, वो बोलेगा ठीक है मुझे मंडे इस टाइम कॉल कर लेना। दैट यूज्ड टू बी फीड इन CRM, एंड CRM बिफोर 10 मिनट्स इट विल गिव अस अ थिंग कि आपको 5 मिनट बाद इसको कॉल करना है। कॉल एंगेजमेंट रेट कितना बढ़ जाता है इससे? बहुत सॉलिड बढ़ जाता है। ओके, क्योंकि आपने उसको छोटा सा बात पूछ लिया ना, एंड यू आर नॉट लाइक स्क्रिप्टिंग नहीं है वहां पे। खाली स्क्रिप्ट होता था फीचर्स एक्सप्लेन करने के लिए, राइट, बात करने के लिए हम इंसान थे। तो ये सबसे प्यारी चीज वहां सीखी। दिन में 200-250 कॉल करते थे, 2-3 इंश्योरेंस पक्का बिक जाएंगे। अगेन उसके बाद नंबर्स गेम भी था। 1% तो बहुत प्यार से कोल्ड कॉलिंग पे। ओके, ठीक है। एंड जो लोग ऐसे थे, तो हमारे पास ना कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी बन जाते थे जिनसे रेगुलर हमसे खरीदा है। दे यूज्ड टू नाउ नो अस। सो CRM में एक बहुत प्यारी चीज ये भी थी कि अगर सौरभ ने इंश्योरेंस बेचा है तो ये नंबर अभी टीम में किसी और के पास नहीं जाएगा। अच्छा, नाउ अगेन इफ आई हैव टू, लेट्स से मुझे अपने मंथ एंड पे टारगेट पूरे करने हैं एंड इस बंदे के साथ मेरी बनती है ना, तो मैं कॉल कर लूंगा। तो बेसिकली आप आने वाले टाइम में कुछ प्रोडक्ट्स भी अपसेल करना चाहते हैं? अगर अपसेल करना चाहते हैं, कुछ नया आया है, कोई प्रोडक्ट में नया फीचर आया है, there is only one point of contact, which made a lot of difference to the sales. But मेरा दिमाग कहाँ पे सेट हुआ कि यहाँ पे ना पैसा कमाने का कंट्रोल है आपके पास। You have control of making your own money in sales. And then I entered into direct selling industry. Oh, hardcore network marketing and direct sales. Okay, right? I will not take the I will tell me more. I will not take the company name here. Right? एक MLM का ना बहुत मीम चलता रहता है कि it is not MLM. Again, I'll tell you difference between. There is a lot of difference between saying it a MLM and a network marketing. Okay. बहुत difference इन दोनों terminologies में, right? So MLM mostly known as multi-level marketing, right? Okay. And मुझे लगता है दुनिया में, पूरी दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो multi-level ना हो। मल्टी लेवल पार्किंग सबको अच्छा लगता है, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या प्रॉब्लम है? मल्टी लेवल पार्किंग क्या है? एक बेस है, उसके ऊपर आपने ऐसा सेटअप बना दिया कि मल्टीपल कार्ड्स खड़ी हो सकती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है? एक फाउंडेशनल बिजनेस है जिसपे सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स बन सकते हैं, राइट? फ्रेंचाइजी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग है। हाँ, यू पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट? पूरा का पूरा D2C, पूरा का पूरा कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस एक डिस्ट्रीब्यूशन से चलता है। बट देयर इज अ प्रोडक्ट देयर। हाँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रोडक्ट होता है, बट वो प्रोडक्ट के नाम पे कुछ और ही बेचते हैं। वो इंसानी प्रॉब्लम है ना, बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है। Okay. It is not a problem of a business function. You're saying it's a moral hazard. It's a moral hazard, yes. And yes, that industry has loose control. वहाँ पे किसी का regulation नहीं है। Got it. Nobody can control that, because once I become an independent distributor to anything, it's my job to see how I build my network, right? And I think that was one reason I get out of that also. But I pursued it for like 5-6 years. Again, जो आदत है ना कि छोड़ना नहीं है। 5-6 साल आपने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया? हाँ, और पैसे भी बहुत कमाए। हम बिजनेस क्लास भी फ्लाई किया, दुनिया घूमा, खूब किया, सब कुछ किया, राइट? ऐसा नहीं था कि गरीबी में निकले वहां से। लेकिन हाँ, जिस दिन बाहर निकली तो फाइनेंशियल नॉलेज नहीं था, तो पैसे का संपूर्ण इस्तेमाल नहीं किया, राइट? सो 2018 तक ये समझ में आ गया था कि हाँ, सेल्स में पैसा बहुत बनता है, नेटवर्क से पैसा बहुत बनता है, और मतलब हम नेटवर्क बनाने में या दोस्ती करने में ना प्रो हो चुके थे बिल्कुल। अब मैंने सोचा इसको ऑनलाइन कैसे लेके जाए अपनी डिजिटल दुनिया में। तो मैंने 2018 में 6 महीने का छुट्टी लिया एंड आई वेंट ऑन यूट्यूब। मैंने कोर्सेज नहीं खरीदने। अगेन, जो आपने मुझसे पूछा था कि कोर्सेज खरीदने से कुछ होता है क्या, मैं कह रहा हूँ आज की डेट में आपको प्रैक्टिकली तो कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको इंस्टाग्राम सीखना है तो इंस्टाग्राम का अपना कोर्स है। गो टू bornoninstagram.com, यू कैन बाय, इट्स अ फ्री कोर्स। जब कंपनी ही आपको सिखा रही है, उससे बेटर कौन सिखा सकता है? बताओ। सही बात है। उससे बेटर आपको फीचर अपडेट कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता, राइट? आप लिंक्डइन पे जाओगे, लिंक्डइन का प्रीमियम ले लो, 3500 रुपए का है और पहला महीना फ्री भी मिलता है। उसमें लिंक्डइन लर्निंग का एक मॉड्यूल है। हाँ। उसमें कम से कम 200-250 वीडियोस हैं और वो बहुत अच्छे लोगों के हैं। तरीके से देख लोगे तो पूरा मार्केटिंग का कोर्स हो जाएगा, राइट? YouTube is a wonderful search engine. I think people need to learn how to search on YouTube also. क्योंकि आप कोई भी टॉपिक डाल लो आज YouTube पे, you will find hundreds of videos. अब आपको ये समझना है, अब लोग क्या करते हैं, मेजरली गलती है। मान लो अगर किसी को कंटेंट राइटिंग सीखना है
दे विल फाइंड अ कंटेंट राइटर जिसका यूट्यूब चैनल पे मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, यूएस में कहीं बैठा है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वो वाला स्ट्रैटेजी ऑफ कंटेंट, वो वाला साइकोलॉजी ऑफ कंटेंट हिंदुस्तान में काम नहीं करेगा। हिंदुस्तानी अलग है, हिंदुस्तानी बहुत प्राइस वॉलेटाइल है, मतलब उनको प्राइसिंग को लेके चाहिए और वैल्यू भी बहुत अच्छा चाहिए, उनको वैल्यू भी अच्छा चाहिए, ठीक है। सो बहुत डिफरेंस है। तो आपको ये समझना है कि मैं किस कोच से या किस ट्रेनर से रिलेट कर पा रहा हूँ, राइट, कौन मेरे वैल्यू सिस्टम में फिट बैठता है। अगर आप उसको फॉलो करोगे ना, चाहे उसके 10 सब्सक्राइबर हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आप ग्रो कर जाओगे। इसलिए जब हम भी कोर्स बेचते हैं ना, आई ऑल्सो फाइंड आउट कि ये जो पार्टिसिपेंट है ये मेरे वैल्यू सिस्टम के साथ फिट बैठता है क्या, क्या इसको रात को 11 बजे कॉल करूंगा तो ये काम कर रहा होगा क्या। तो आपके स्टूडेंट्स ऐसे ही जो 11 बजे के टाइम पे काम कर रहे होते हैं? हाँ, मतलब वर्कहॉलिक चाहिए मुझे। ओके, मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, टाइम होना चाहिए, फिर टाइम दो, फिर मत बोलो मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। सो ये हार्ड वर्क है, कितने टाइम तक के लिए चलता है आपके कोर्सेज? आई थिंक अगर तरीके से 1 साल कर लो तो यू विल बी सॉर्टेड। उसके बाद फिर आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट। फैमिली को टाइम अभी भी दे सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे सकते, बट मैं कह रहा हूँ जब आप ऑफिस जाते हो तो आप सुबह 8 बजे निकलते हो और रात को ऑलमोस्ट 8 बजे तक घुसते हो घर में, आप 12 घंटा डेडिकेटेड देते हो, राइट, ऑफिस को। आई थिंक अब टाइम और बढ़ गया, अब टाइम और बढ़ गया है, बिकॉज ट्रैवल टाइम हो गया है, 14 घंटे भी है, 16 घंटे भी है, राइट। आप एक्चुअली तो फैमिली को टाइम दे ही नहीं पा रहे। करेक्ट। लेकिन जैसे ही आप फ्रीलांसिंग में आते हो, साइड हसल करने लगते हो, तो फिर फैमिली टाइम को क्यों रो रहे हो, बताओ मुझे। तो वहां तो आपने 20 साल दे दिया कॉर्पोरेट को, राइट। उससे पहले आपने कॉलेज लाइफ को दे दिया, उससे पहले आपने स्कूल लाइफ को दे दिया। जिस फैमिली टाइम को आप रो रहे हो वो आपने दिया कब? कभी भी नहीं दिया। एंड दैट इज द थिंग, दैट इज द रीजन आई एम सेइंग दैट आपका फ्रीलांस कोर्स जो है, अगर कोई भी ज्वाइन करता है एंड लेट्स से समबडी इज ट्राइंग टू लर्न दैट पार्ट, तो वही है कि बाय द टाइम ही इज कमिंग बैक टू, कितने घंटे देने पड़ते हैं? यार मैं कहता हूँ अगर आप 5 घंटे डेडिकेटेड प्रोडक्टिव निकाल लो ऑन अ डेली बेसिस, 5 घंटा, 16 घंटे बंदा काम कर रहा है। 16 घंटे वाले को बोल रहा हूँ 5 घंटा कर लो, सिर्फ डेडिकेटेड कर लो, बट 5 घंटे। सी अगेन, वो जो कॉर्पोरेट में 10 घंटा ऑफिस में बैठा है ना, प्रोडक्टिविटी तो 2 घंटे भी नहीं है उसकी। हम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिव आवर्स। हाउ कैन यू से सो? हमने काम किया है। आप साइकिल देखो क्या होता है एक नॉर्मल कॉर्पोरेट के बंदे का। वो सुबह ऑफिस जाएगा, एक तो पहले आधी हाई चांसेस लेट पहुंचेगा, राइट, ठीक है, भगता भगता जाएगा, फिर एक रिव्यू मीटिंग होगी जिसमें एक्चुअली कुछ नहीं होता डेली बेसिस पे, आधे पौने घंटे की। फिर उससे परेशान होकर लोग निकलते हैं सुट्टा मारने, चाय पीने, फिर नीचे आएंगे, चाय पी के जाएंगे, तब तक 11 बज चुके होंगे। फिर वो 1-1.5 घंटा काम करेंगे, जिसको वो काम बोलते हैं। उसमें वो उसको उस काम के नाम पे वो 2-4 ईमेल्स फॉरवर्ड करते हैं, बेसिकली सीसी करते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं। फिर लंच टाइम हो जाता है। तो प्रैक्टिकली काम ना 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में होता है, क्योंकि अब उनको दिन रैप अप करके अपनी प्रोडक्टिविटी दिखाना है कि आज मैंने क्या किया है, उनको रिपोर्ट भेजना है। मतलब आपका 11-12 बजे ऑफिस में बैठने का कोई काम ही नहीं है, अनटिल अनलेस यू आर इन मैकेनिकल इंडस्ट्री जहाँ पे प्रोडक्शन प्लांट चल रहे हैं। सो आप देखो ना, मतलब आई वर्क विद अ क्लाइंट जो कहते हैं हमारा ना 6 बजे सर्वर बंद हो जाता है, ईमेल जाएगा ही नहीं, खत्म। वो कहते हैं हमारा फिक्स है मंडे टू फ्राइडे 9 to 6 सर्वर ही बंद होते हैं उसके बाद, विच मीन्स हमें ये काम इस पीरियड में ही खत्म करना है। उनका हो जाता है खत्म काम, राइट। सो आई बिलीव कि अगर आप 5 घंटा प्रोडक्टिव काम कर लो, फोकस होके, सब कुछ साइड में रख के, within the office hours, but don't you think that will be moonlighting instead of? नहीं, विद इन ऑफिस आवर्स नहीं है। देखो अगर आप अभी ऑफिस में हो तो आपको शाम को करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। आपको 2 घंटा अगर उस ऑफिस के साथ साइड हसल कर रहे हो, 2 घंटा एटलीस्ट, राइट। और ये 2 घंटे में आई थिंक जो आप ट्रैवल टाइम भी है ना, उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ योर लर्निंग। That's a good suggestion. आपको पॉडकास्ट सुनना है, आपको बुक पढ़ना है, right. आपको यूट्यूब वीडियो देखना है, कुछ भी करना है वो आप कर सकते हो। आपको ईमेल्स भेजने हैं, आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, आपको लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाने हैं, वो सब आप ट्रैवल टाइम में कर सकते हो, राइट। ड्राइविंग कर रहे हो तो लर्निंग वाला काम कर सकते हो, ऑडियो लर्निंग वाला, मेट्रो में हो तो सब कुछ कर सकते हो बाकी, बिल्कुल, ठीक है ना। एंड आई थिंक उसके बाद आप घर जाके रेस्ट करके 1 घंटा खाना खा के 1 घंटा इवनिंग में दे सकते हो कि आपको कल का दिन क्या प्लान करना है। एंड थिंक ऑफ इट, जो बंदा फोकस्ड होगा ना, वो सुबह ऑफिस टाइम पे पहुंचेगा, वो चाय ब्रेक पे नहीं जाएगा, वो ना लंच तक अपना ऑफिस का काम निपटा लेगा, वो ऑफिस से भी जल्दी निकलेगा। फिर ये इस लेवल की लेजर शार्प क्लैरिटी के पीछे आई एम श्योर दैट there is a very famous saying है, maturity comes with damage and not by age. Yes. ठीक है ना। तो 100% उसके लाइफ की कुछ कंडीशंस होंगी उसके वजह से वो is very focused, he wants to complete in a particular point of time. And I think working professionals, मतलब growth path in the organization की तो बात छोड़ो, but in general life को लेके काफी वो रहता है, disoriented से रहता है। तो again one of the motivating factors is
creating a side hustle because obviously they have seen कि उनको रिटायर होना है एक पर्टिकुलर एज में. Yes. एक ये आता है थॉट हमेशा बंदे के दिमाग में कि यार इतना काम कर लिया, इतना हम लोग बचा भी नहीं पाए. बिकॉज Correct. अगर आप इतने सालों का पूरा कैलकुलेट करोगे, आई वुड से 5% भी सेव नहीं होता उनके लाइफ टाइम के लिए. हाँ, क्योंकि जैसे जैसे उनका सैलरी बढ़ता है ना, उनका लाइफस्टाइल बढ़ता रहता है, उनको पीयर प्रेशर में बढ़ाना पड़ता है. राइट. सो एक्चुअली वो कमाई से ज्यादा खर्चा कर रहे होते हैं हर टाइम. और आज की डेट में आप देखो एक बार, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, अगर आप किसी भी मेट्रो सिटी में रहते हो, एक अच्छा 3 BHK जो कि एक डिसेंट फैमिली को चाहिए, अगर आप खाली हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे भी हो, तो 1.5 से 2 करोड़ का है. अब तो और बढ़ गया. अब और बढ़ गया. अब और बढ़ गया. तो जिसकी सैलरी 20, 25, 30 लाख है, वो इसको कैसे खरीदेगा? लोन लेके खरीदेगा. मतलब 30 साल के लिए फंस गया ऑलमोस्ट. 20 साल की तो कम से कम फंस गया. राइट. अब तो जॉब छोड़ ही नहीं सकता. अब उसका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा डिमिनिश हो गया. राइट. So I say when you make more money in the young age, like from your 25 years of age to 32, these 7 years you have zero responsibilities. Don't get married अगर आपके पास उतना वो नहीं है तो. And don't focus on expanding your lifestyle. Focus on expanding your financial portfolio. Right. अगर आप ये कर लेते हो ना, 32 की एज में you'll be financially, mentally free. I'm not saying financially free, I'm saying financially, mentally free. आपको पैसा कमाने की आग नहीं होगी. आपको लगेगा हाँ मैं सिक्योर्ड हूँ, इंश्योरेंसेस है, पोर्टफोलियो है. राइट. बड़े खर्चों के लिए मैंने बना के रखा है. सॉर्टेड. राइट. एंड आई थिंक ये पोर्टफोलियो इतना हो सकता है कि आपको 35 की एज में अच्छा 2 करोड़, 1.5-2 करोड़ का घर कैश डाउन दिलवा सकता है. या फिर अगर आप लोन भी लोगे तो आपको पता है मेरे पास बैकअप है. करेक्ट. will not fall. Yeah. Right. Yeah. So I think this entire conversations with a lot of people on LinkedIn during this sabbatical time made me think about them. Sabbatical was which year? This was 2018 mid. Okay. Right. So साथ what I did, I went on YouTube. I picked up all the major channels: Mind Valley, Evercoach, Impact Theory, Think School. Right. All these channels. And I think I watched around 1000 GB worth of data. Oh. On YouTube. Okay. But this 6 months was not like कि मैं खाली डेटा देख रहा हूँ और कर रहा हूँ. I used to sit like a student, taking notes. मेरे पास इतनी डायरीज भरी हुई हैं. Okay. I still go back to them when I need to read, right? And I understood किस टाइप के YouTube channels हो सकते हैं, किस टाइप का content हो सकता है, right? And मैं आज भी Netflix का मतलब डेली का 1-1.5 घंटा मेरा Netflix पे होता है. What do you watch there? I watch majorly things like US politics based documentaries. जैसे अभी मैं वो देख रहा हूँ Designated Survivor, right? It's about all US politics. आपका इंग्लिश बहुत पॉलिश होता है. आपको कंटेंट की समझ आती है, हुक्स कहाँ पे हैं, सस्पेंस कहाँ बन रहा है. इफ यू आर एबल टू गेज इट, अगर आप एक कंटेंट में जाना चाहते हो तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा. सूट्स है. सूट्स अगेन इज अ ह्यूज सीजन. सूट्स बहुत एडिक्टिव है. 140 सीजन्स. आई थिंक मैं पहला बंदा था लिंक्डइन पे जिसने इन चीजों के बारे में लिखना स्टार्ट किया था. दैट ओके 10 एंटरप्रेन्योरशिप लेसन्स फ्रॉम सूट्स. The first post went viral like 7 lakh views. I'm like ये क्या हो रहा है, right? And then I saw के लोग ना आपसे आपके प्रोफेशन पे नहीं जुड़ते हैं. They will find a common interest outside your profession, which was suits. तो सूट्स फैन जुड़ने लगे. वो सूट्स फैक्ट्स में एक इंडियन बिलियनियर भी था who commented on my post. Wow. Right? तो ऐसे ही करके फिर मैंने वो देखा हाउस ऑफ कार्ड्स. अगेन सिमिलर यूएस पॉलिटिक्स. हाउस ऑफ कार्ड्स पे भी सेम सीन गया. देन अंडरकवर बिलियनियर केम, अनदर डिस्कवरी पे आया था सीरीज. इट वेंट अगेन. मैंने कहा ये चल रहा है. राइट. सो वी एक्चुअली आई वाज डूइंग लर्निंग सीरीज विद अ लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म. तो वहां पे हमने यही किया, ब्लॉकबस्टर लर्निंग्स. Wow. So we used to pick micro videos from these series and teach them what is content marketing. राइट. सो सूट्स में एक छोटा सा पीस है जहाँ पे माइक रेचल को बता रहा होता है अपनी डेटिंग ऐप पे अपना ऐसे कैसे लिखना है. अच्छा. He's explaining her how to write your about summary basically. If you listen to that audio, you will be able to, listen to that clearly. You will be able to write your LinkedIn summary also in a similar way. Because most of the people, when I ask you, okay, what do you do? I'm a marketer. That's a very boring way of introduction. Boring way of introduction, right? But you can say I come from somewhere, like people listen stories. Got it. उनको stories चाहिए. मेरी family जो मैंने आपको बताया, मेरे LinkedIn पे as it is लिखा हुआ है, come from a बनिया business class family. और वहाँ थोड़ा और polish करके लिखा है, मैं youngest gem of a बनिया business class family, right? So you can read that, and then there is a story of 2018, 19, 20, 23. क्या क्या किया मैंने इन सालों में, and ये result है, right? So वो जब story लिखोगे तो बहुत मजा आता है लोगों को पढ़ने में. They go step by step. Got it. Right? तो आई थिंक ये एक पार्ट था जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कोर्सेज से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन का असर होता है.
एक 15 मिनट का वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। एंड ऑल्सो अगेन एक पोस्ट होता है, बिकॉज नॉर्मली पीपल एमलेसली समटाइम्स दे पोस्ट एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट लेट्स से आपने सूट्स वगैरह पकड़ा और उसके बाद फिर आपने यू वर एबल टू क्रिएट अ पोस्ट आउट ऑफ दैट व्हिच नोबडी वाज डूइंग, गेटिंग दैट intuition or getting that sense कि यार ये लिखते हैं because this is connecting with me, that inner connect also Yes. which resonates with the entire world, that is also I would say, मेरे को नहीं पता इसको आर्ट कहेंगे, स्किल कहेंगे, साइंस कहेंगे, सिक्स सेंस कहेंगे, I really do not know, but ये वाला जो पार्ट है ना ये थोड़ा मिसिंग भी है, and that is the reason why people feel कि oh I don't get post में likes, Yes. I don't get anything, so why should I write in the first place? Yes. And what LinkedIn people normally do is जैसे ही उनकी जॉब चेंज होती है, hi join this company in this position, Yes, उसके ऊपर बस। बहुत सारे के सारे आते हैं और आता है सेकंड कि 15 साल कंप्लीट कर लिए हैं, उसको एनिवर्सरी विशेस मिल रहे हैं और एक बर्थडे वाला आता है, ठीक है ना, या तो प्रमोशन का आता है, Yes. एंड दीज आर द ओनली पोस्ट व्हिच आई हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ द वर्किंग प्रोफेशनल्स गेटिंग एंगेज्ड, हाउएवर आई हैव नेवर सीन देम क्रिएटिंग कंटेंट Yes. फॉर क्रिएटिंग अ क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी। फॉर दैट मैटर मैं अपनी बात करूं, मैंने भी नहीं करा था लिंक्डइन पे और मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं तो what So do you I think जो working professionals busy है ना लाइफ में, who are in senior management और mid management से ऊपर, practically उनके पास अपने लिए सोचने का टाइम भी नहीं है। That's why I'm saying it is not about money first. It's about buying your time and taking control of your life first. Once you have that sense कि मुझे अपनी जिंदगी का कंट्रोल ही मेरे पास नहीं है, so just think of it. If anybody is listening to it, he can just take a pause in life, pause this video also and think, लास्ट टाइम मैंने कब अपने बारे में बैठ के आधा घंटा पीसफुली सोचा था कि मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है। इफ यू कैन नॉट रिकॉल दैट टाइम विद इन पास्ट 6 months और 1 year, प्रैक्टिकली यू हैव नथिंग इन कंट्रोल। कोई और आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। देखो, ऑफिस आपको टाइम बताता है कब आना है, ऑफिस आपको टाइम बताता है वापस कब जाना है, बॉस आपको टारगेट्स देता है, राइट, और ये सबके बीच में एक फिक्स सैलरी है जो कि वो भी ऑफिस बताता है कि आपको कितना पैसा हम देंगे। तो आपके कंट्रोल में तो कुछ नहीं है। Kind of, yes, Right. obviously. Anything bad happens, they can fire you today. You can't sue them for that. Yes. कुछ नहीं कर सकते आप, right? और वो ज्यादा क्या बोलेंगे, सॉरी बोल देंगे, 2 महीने का और सैलरी दे देंगे, बट इफ यू डोंट गेट अ सैलरी फर्दर और अ न्यू जॉब, they won't help you, right? So that's why I think that Side hustle is like the insurance policy of your career. yes, it is always, and मुझे ऐसा लगता है जो इंसान 50,000, 60,000, 70,000 की नौकरी कर रहा है, वो तो वैसे ही बहुत लिमिटेड बजट में जी रहा है आज की डेट में। उसको जिस तरीके से निर्मला सीता, हाँ, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर, इस तरीके से वो टैक्सेस लगा रही है, एग्जैक्टली, इन्फ्लेशन क्या टैक्स ही बीट कर रही है इस टाइम पे एक आम आदमी को। Yes, बहुत so परेशान I है। think even as agency owners and freelancers and business owners, we end up paying around 42% tax. Correct. Right. So आप जितना कमा भी रहे हो, आपको भी पता है वो इनफ नहीं है, right? But the thing is that कि आपको उस mental structure से ना बाहर आना पड़ेगा। So आप इंडिया में देखोगे ना, आज भी इंट्रोडक्शन अच्छा कौन सा लगता है। So let's say आप किसी फैमिली गैदरिंग में हो तो वहां पे 4 कजन्स हैं, अभी कोई मामा जी आएंगे, पूछेंगे बेटा क्या कर रहे हो, एक बोलेगा आई एम अ VP इन सो एंड सो कंपनी, वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया बात है, राइट, और मुझसे पूछेंगे हाँ मेरी एजेंसी है, मार्केटिंग एजेंसी, वो क्या होता है, सवाल पे स्टार्ट होता है, अच्छा करते क्या हो, है ना, कितना पैसा कमा लेते हो, भाई उससे क्यों नहीं पूछा, वो नौकरी और डेजिग्नेशन में तुम्हें क्या समझ में आ गया बताओ मुझे। लेकिन इंट्रोडक्शन वही अच्छा लगता है उन्हें, मैं गूगल में काम करता हूँ तो बहुत अच्छा है, राइट, बट भाई मैं एजेंसी ओनर, गूगल मेरा क्लाइंट है, उससे ज्यादा पैसे मुझे देता है, समझो बात को, राइट, वो तो वो नहीं समझ रहे। तो इंडिपेंडेंस, आई थिंक हिंदुस्तान में बिजनेस ओनर्स की दुनिया थी, बट वो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और टेक रेवोल्यूशन, IT रेवोल्यूशन जब आया तो गांव के बच्चों को वो ग्लासी बिल्डिंग ज्यादा अच्छी लगने लगी। लेकिन अभी ना रिवर्स चल रहा है, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, राइट, लेकिन वो ग्लासी बिल्डिंग शुरू में अच्छी लगती है, बाद में वो ट्रैप है, राइट, तो किसी टाइम पे तो और गर्मी लगती है वहां पे, हाँ, राइट, तो किसी ने बोला ना, कह रहे योर जॉब इज नॉट अ जॉब, इट्स अ प्रिजन विद अ कप ऑफ कॉफी। Yes, practically, right? Correct. Now I'm not talking that every company is like that, but majorly are, right? But there is another argument. There is this guy who said that job is also one of those places which is helping you get your money. It is helping you take care of your bills. Yes. It is helping you try to experiment with Yes. things, and also helping you save coppers. So again, there is another set of people who believe that आज की डेट में जिंदा है and grateful towards the job. I think I am also like, मैंने जो 2 साल जॉब किया, I met great people, they gave me great lessons, but I think
sticking to that all my life was not my calling. See, you need to think of growth, right? So देखो, अगर आप 22-23 साल की उम्र में ऑलमोस्ट जॉब में घुस जाता है इंसान, राइट? कॉलेज खत्म करके, MBA खत्म करके, अब आप अगर 30-32 की एज में हो, सो आई एम टॉकिंग टू मिड एज प्रोफेशनल्स एक्चुअली, राइट? आपको ना पता है कि आप CEO बनने वाले हो या नहीं. You need to acknowledge that fact today. CEO क्या सीनियर मैनेजर बनने वाले हो कि नहीं? एग्जैक्टली. या फिर आपका जो खर्चे हैं और जो आपकी कमाई है वो मैच कर रही है कि नहीं. इफ यू थिंक यू आर कंफर्टेबल, कंटिन्यू, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. ये साइड हसल इज नॉट अ पुश कि करना ही है. कर लोगे तो अच्छा है, मतलब तुम ही कमाओगे ना, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा उससे. तो लेकिन आई थिंक another study from Gallup. Now Gallup is not a small thing, right? Gallup तो strength finder उसका बहुत famous test है. Yes. Now Gallup says 84% of job workers globally hate their jobs. They only do it because they have to pay bills. They have families, they have responsibilities, right? They have loans. हाँ, so अब मैं वही बोल रहा हूँ कि your bills are taken care of by job, good. शाम को 2 घंटा अपने लिए निकाल लो, right? So this is giving you a living 9 to 5. And 7 to 12 can give you a fortune also ना. तो प्रॉब्लम कहाँ है? हो सकता है जो भी आपका स्किल सेट है, अगर आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, यू टर्न आउट टू बी वेरी डिफरेंट ह्यूमन बीइंग जो आपने सोचा भी नहीं था. मैं तो खुद के बारे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग सोचा था, फिर तो ग्रीस में हाथ काले करे वो चाबी पानी रगड़ रहा होता मैं अभी तक, अगर मैंने एक्सप्लोर नहीं किया होता तो, right? But then content economy happened, all this happened, so I'm moving with. So अभी ना मैंने Bloom Ventures का एक podcast सुना, which was the founder of Freshworks was there on the podcast as a guest, right? He said growth is all about riding the waves. If you can ride a right wave, you'll grow very very fast, and it is effortless practically. Yes. So pandemic के time पे I think Gen Z was very smart to get on LinkedIn. Become content writers and make money. I know girls who are in college who are good with English, 21-22 years old, earning 2-3 lakhs a month. Wow. Right? Right. I have one of my students who closed, I think, around 90 lakhs in 2022. Right. Good money. Like उसका salary ही 4.5 लाख था पूरे साल का पहले जॉब में, right? But it took me like 3 months to convince her to get into freelancing and do things. Again, it's tough. You travel, you meet a lot of people. It gets hectic also, right? It comes with its own pros and cons. But yes, ultimately, if you have the financial power, you are much better. Absolutely. You get money and you've got the freedom to think. Yes. So I think autonomy एक तो आया था आपका freedom of time. Yes. And second is you have independent thinking. You don't have to think twice. कि अगर आप रेस्टोरेंट में भी जाते हो ना, आप नॉर्मली देखता है कि अच्छा कितने रुपए का है, तो यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंस्टेड ऑफ राइट टू लेफ्ट. Yes. So I think a lot of things changes once you get the money in your hand. So good, yeah. I mean, so again, what is your take on? I would say this is something which we've already read about, Gallup, and you've already read about Bloomberg case studies. And so, what exactly are the working professionals doing wrong? कर क्या रहे हैं वो, गलत क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे, सब कुछ जानने के बाद भी why are they not able to take action? Fear of what? Fear of loss, fear of लोग क्या कहेंगे. क्योंकि जैसे मान लो right now let's say if you are in a corporate world and your boss is a very sorted man who's like a corporate lover, कि मेरी तो जिंदगी यही है, and as soon as you try to do something, he is the first one to laugh at you. Basically the fear of failure and rejection or being mocked at. Yes. क्योंकि कॉर्पोरेट के जो लोग हैं उनके पास अपना वो जो पीयर सर्कल है ना, वही रिस्पेक्ट देता है उनको. अगर वो रिस्पेक्ट उनकी लूज हो जाए तो उनके पास कुछ बचता नहीं है. तो वो जो ट्रांजिशन पीरियड है ना, बहुत टफ हो जाता है सडनली. तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर कोई बंदा कुछ कर रहा होता है, तो what exactly should be the strategies? For example, I'll give you example. अभी जो कुंभावा में वो IIT बाबा फेमस हो रहे हैं, yes. right? Okay, IIT बॉम्बे से एरोनॉटिकल इंजीनियर है. Now people are laughing at him, right? But I think उनका एक वीडियो वायरल नहीं हुआ. He was talking about a relationship between 0, 1 and infinity. वो नहीं हुआ वायरल. वो नहीं हुआ वायरल. बाकी सारी चीजें वायरल. जो वो क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहा है बैठ के बंदा, वो वायरल नहीं हुआ. Okay. लॉजिक नहीं समझना किसी को, हंसना है, right? My mom was telling me something yesterday, and look at the numbers, right? IT Delhi graduate, did corporate job for 10 years, and from past 10 years he's teaching yoga. Interesting, right? Let me tell you the model. We created a Facebook community, said 21 days free yoga. 21 days. You know how many people joined the Facebook community? I think in millions.
1,50,000 people or more. Okay, ठीक है. that's great. And after these 21 days, he made an upsell of only 4,000 a year. 4,000 a year. हाँ. Okay. हर रोज क्लास होगी, उसे तो करना ही होगा अपना, वो लाइव चलेगी, है ना. 4,000 a year जिसको देना है वो आ जाओ, पूरा साल योगा करो मेरे साथ. 1.5 लाख में से मेरे रेशियो के हिसाब से 5,000 लोगों ने साइन अप कर लिया होगा बहुत प्यार से. 4,000 के प्राइस पॉइंट पे. हाँ. बहुत बढ़िया. 2 करोड़ का रेवेन्यू सर. अरे वाह. लेकिन जिस दिन इस आदमी ने स्टार्ट किया था, इसको भी गाली ही पड़ी होगी, क्या बेवकूफ है, IIT इंजीनियर 1 करोड़ की सैलरी छोड़ के योगा सिखाएगा. आप नंबर्स देखो अभी, राइट. एक्सपेंशन देखो ना कितना है लाइफ में. एंड योगा इज अ गुड थिंग टू डू. बट अगेन जैसे कि जो बाबा जो है जो हाँ. फेमस हुआ है, अगेन टेकिंग बैक सर्कलिंग बैक टू द कन्वर्सेशन, IIT के बाबा फेमस हुए. बाबा इन जनरल फेमस नहीं होते. हाँ. क्योंकि यहाँ पर भी एक टैगलाइन आ गई, IIT इज नोन एज एन अथॉरिटी. अभी ट्रस्टेड अथॉरिटी. इससे शॉक लगता है ना यार, ये तो हमारा ड्रीम था, ये बंदा ये ड्रीम को छोड़ के कुछ और कर रहा है. हाँ. थिंक ऑफ इट, राइट. राइट. आई नो IAS ऑफिसर नियर मी हु लेफ्ट IAS ऑफिसर IAS job voluntarily because said I don't like the system this way. I'm leaving and I'll do something else. अब जब आप उनसे मिलते हो ना, he is the person who will guide you whether you should do IAS or not. IAS करने के लिए माइंडसेट होना क्या चाहिए. So मुझे ऐसा लगता है ये जो स्ट्रक्चर है ना पूरा, we are trained to get into a corporate career. Even you do MBA from best of the B schools in the country, they will not say कि आप business करो, they will say job करो. They train you for the job for 24 years of your life. That's why it is hard to come out. Technically, if a person wants to break this mindset, कितने साल लगते हैं? Because 24 घंटे तक तो आपकी पूरी कंडीशनिंग हो गई. I think एक रियलाइजेशन लगता है इसे ब्रेक करने के लिए. This is an internal thing. This again takes time because work के बाद उसको जाके समझ आता है कि मैं कर क्या रहा हूँ. I think या तो वो किसी नियर बाय वाले को देखता है, राइट. या फिर वो जब किसी बहुत सीनियर को बहुत एडमायर कर रहा हो, वो एडमिरेशन वाला बंदा उसको आके सच बताए, जैसे मुझे किसी ने सच बताया. क्या था वो सच? वो सच वही जो मैंने आपको शुरू में बताया कि भाई 3 करोड़ सैलरी हो जाएगा सौरभ तेरा, बट बच्चों के लिए टाइम नहीं होगा, फैमिली के लिए टाइम नहीं होगा. अच्छा. लाइक वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट. पैसा मैं कम भी कमा लूंगा चलेगा, बट परिवार चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं है. सो यू नो, I even talk to people who move out of the country just because they want a better lifestyle. I can promise you don't have a better lifestyle anyway. You can show me all the branded things you buy for me. You can get all the gifts for me, everything, right? But at the end, जब यहाँ पे फैमिली में किसी का बर्थडे होता है ना, you crib and cry there sitting at home alone. जब यहाँ आपका कोई अपना स्वर्गवास हो जाता है ना किसी का, तो आप वहाँ अकेले बैठ के रोते हो. आपको डर लगता है कि मैं 5 लाख रुपए खर्च के अब आऊं कैसे, राइट और नॉट. वो पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है. करेक्ट. बैक टू बैक फैमिलीज में शादियां हो रही होती हैं और आप वहां बैठ के वीडियो कॉल पे देख रहे होते हो. डजंट मेक सेंस टू मी, राइट. सो इट इज अबाउट एक्सेप्टेंस कि आप अपने साथ कितना एक्सेप्ट कर सकते हो, राइट. आई थिंक आई डिजर्व एवरीथिंग इन लाइफ. आई नीड अ होलिस्टिक लाइफ. मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. पैसे के बिना तो भाई सुबह का टॉयलेट पेपर भी नहीं आता. इट्स वेरी क्लीन टू मी कि पैसा तो चाहिए लाइफ में. रहो आप कहीं भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता. इट इज नॉट अबाउट अ बिग होम और अ स्मॉल होम. इट इज अबाउट अ गुड होम, लाइक where you can find your vibe, a society or a place where you can find your vibe, where you have good people to live with, right? अभी जैसे I recently discovered in my own society in Chandigarh, a success gang mentor lives there. Oh. I immediately called him. I said, मेरे को और किसी से बात नहीं करनी यहाँ पे, right? You are the guy I can meet over a cup of coffee every Sunday also, and he lives like 3 blocks to me. Correct. So मुझे ऐसा हमेशा फील होता है कि आपको ना अपने अंदर एक दिन बैठ के, लाइक इफ एनीबडी इज लिसनिंग टू दिस, शुड स्टॉप आफ्टर लिसनिंग टू दिस, थिंक विद अ पेन एंड पेपर एंड राइट कि मैं दिल से एक्चुअली चाहता क्या हूं और वो मेरे पास कैसे आएगा. अगर ना आंसर मिले ना कैसे आएगा, तो मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर दे, विल फिगर इट आउट, राइट. कैसे आएगा तो भाई देखो, पैसे कमाने के ना आज की डेट में बहुत जरिए हैं. सिंपल कैलकुलेशन अभी एक जैसे एक योगा ट्रेनर की बताई, राइट. उसके बाद आई नो यूट्यूब वीडियो एडिटर, राइट. ऑलमोस्ट लाइक ही इज अ प्रो एट वीडियो एडिटिंग, लाइक उसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री में, करेक्ट. ही चार्जेस 25,000 पर एपिसोड एडिटिंग, बट वो एक ही बार में ना फुल करके देता है आपको, मतलब आपको एडिटिंग नहीं कराना पड़ेगा दोबारा उससे, राइट. वो महीने के 10 एपिसोड करता है. हाउ मच मनी? 2.5 लाख a month. Oh, that's pretty decent. मतलब 25,000 एक का, 25,000 एक एपिसोड का, राइट. 10 एपिसोड करने में उसे 10 ही दिन लगते हैं. 20 दिन वो खाली बैठता है. 20 दिन वो ट्रैवल करता है, योगा करता है, किताबें पढ़ता है, चिल मारता है.
तो प्रैक्टिकली वो डेली का 2 से 3 घंटा काम कर रहा है। उसने अपने आप को यहाँ बना के रखा है, राइट। मैं एक और ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसने इसको स्केल करके अभी 70 लोगों की वीडियो एडिटिंग टीम है, 4.5 करोड़ रुपए साल का रेवेन्यू है। स्केल आपको डिपेंड करता है आपकी इच्छा क्या है, राइट। बट लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाना घर बैठ के बहुत आसान है। It has become very easy today. It is all about having a skill and how you can offer that skill to solve somebody else's problem. Problem सबके पास है, राइट। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा निखिल कामत का भी कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ भाई है, सबकी प्रॉब्लम्स है ना। एंड मैं कहता हूँ जितना आदमी अमीर होता है ना, अगर उसकी प्रॉब्लम नहीं भी है ना, वो अपना काम आउटसोर्स करना चाहता है। You just tell them you deserve that outsourcing and you can help them better, right? काम तो सब होते हैं। So again, getting into that again, I think this is a pretty amazing thing. और मेरे को लगता है कि thin line, or you can say something which is invisible in this entire conversation, is the mindset. Yes. क्योंकि मेरे को एक चीज समझ आ रही है कि only a person who has this kind of a mindset can openly and freely talk about this. और मैंने देखा कि vibe भी उन लोगों का मैच करती है जो अगेन somebody who is having a growth mindset कह लो, या मैं बार बार कैरल डुवेक की बुक की बार बार बात कर रहा हूँ, बट उस वाले इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज somebody who can talk sense, or you can somebody is talking the truths so openly, is very very open to adapt himself. Yes. ठीक है ना, with the reality. Yes. ये लेट्स से मतलब ये बातें सुनने के लिए बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक्चुअली में ना रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। और ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है जो आपका प्रोग्रेस रोक देता है, बिकॉज पहले से ही आपको डरा देता है। Yes. एंड देयर आर सम स्टेटमेंट्स व्हिच आर गोइंग इन द सोसाइटी, जिसकी वजह से मतलब आज की डेट में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, बोलने में इजी है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। एंड और भी ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपके दिमाग के अंदर हाईजैक कर देता है और कहते हो कि यार जो अभी कर रहे हैं ना उसी को करते हैं। करेक्ट। फालतू में एक्सपेरिमेंट क्यों करें, पता लगे ये भी खराब हो गया। एंड देयर इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज टू क्या बोलते हैं, वन इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। यस, ठीक है, दैट इज आल्सो अनदर स्टेटमेंट। सो अगेन एंड ऑल्सो यार सिंगल टास्किंग बेटर है, मल्टीटास्किंग क्यों कर रहे हो? तो मैं कह रहा हूँ कि ये अलग अलग तरीके से पीपल कैन परसीव कि यार इतने सारी चीजें हम क्यों करें। करेक्ट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक इंसान इस पूरे ट्रैप से बाहर निकले, because I feel that whatever you're talking about is a matrix. Yes. And we are all trapped in this matrix. And आपने भी बोला था कि अगर आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं और क्या मतलब, again, do you have a series of questions which are like sequential and scientific in nature, ताकि बंदे का दिमाग थोड़ा थोड़ा खुलने लग जाए? हाँ. You have something on yes, that? Yes. Right? So I think एक बार थोड़ा रॉ जाना पड़ता है शुरू में, एंड यू मे नॉट बी एबल टू थिंक, देन यस यू विल नीड सम प्रॉम्प्ट्स। आई थिंक ऑफ नीड्स ऑफ योर लाइफ, राइट? मे बी आस्क योर किड्स, दैट्स द बेस्ट वे। दे आर फ्री थिंकर्स राइट नाउ, राइट? ओके, सो माय नीज रीच्ड आउट टू मी एंड शी वाज 6 years old लास्ट ईयर, एंड शी सेड मेरे को ना इंस्टाग्राम चैनल बनाना, क्या करोगे? तो कहती है मैंने ना बहुत सारे रील्स देखी हैं, बच्चे अपनी मम्मी पापा का मजाक उड़ाते हैं, मुझे वही करना है, राइट? आई सेड वेरी नाइस। तो बेसिकली अच्छा ये था कि उसने कुछ चीजों को देखा और उसको एक एस्पिरेशन बनी, राइट? बट देन एज अ पेरेंट इट्स आवर जॉब टू गाइड दैट एस्पिरेशन इन अ राइट वे। आई सेड देयर आर 3 more गुड थिंग्स दैट यू डू, व्हिच इज यू ड्रॉ, you sketch, and you dance, and you tell stories, right? कहती हाँ, and Minka, you have learned a lot of Hindu mantras from your dadi also. Can you share them with people? कहती yes. Can we build a channel on that? कहती हाँ, that will be better. Right? अब वो फिर उसके लिए थोड़ा उसको स्टोरी टेलिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन को मैंने एक डेडिकेटेड टीचर उसको दिया। 1 साल में वो ट्रेन हो जाएगी, then she will go, right? So sometimes, you know, we are not able to even think of small things that we can do right now because we're not thinking, right? Because mind preoccupied hai, right? So that's why I think that solo time is important, right? Where you can actually think deeper, talk to your family, उनको क्या चाहिए? Because कभी-कभी ऐसे लगता है ना, जब रेगुलर लाइफ है सब कुछ है तो सही, इसको क्या चाहिए, सब ठीक है। हस्बैंड वाइफ के बारे में ये सोचती है, वाइफ हस्बैंड के बारे में ये सोचती है, इसको क्या चाहिए, सब कुछ तो ठीक है। बट कभी-कभी there are many desires inside. Unaddressed desires, right? Okay, and it can be travel. So I asked the question on, let's say asking questions is good. Let's say you don't have to worry about money,
right? Somewhere from some space you are earning 20 lakhs a month. It is consistent for next 10 years. Then tell me what will you be doing today? You don't have to worry about the money and 20 लाख रुपए महीना आ रहा है कहीं से, तो अब आप क्या करोगे? वही करेंगे जो करना चाहते हैं. बेसिकली गो बैक. करना क्या था? Travel, spend more time with family, more productive time maybe, right? And you know, travel is the topmost of people's list. But उनको लगता है travel expensive है. More than expense, travel needs time, right? And experiences is not about only कि मुझे कहीं बाहर जाना है. It can be महाकुंभ. आज मैं अपने पूरी कम्युनिटी के लोगों से पूछता हूँ, अच्छा कौन कौन चल रहा है, मैं फिर में जा रहा हूँ, कौन चलेगा? लेट्स गो 20 cars, लेट्स ड्राइव टुगेदर, इट विल बी अमेजिंग, राइट? बट सौरभ टाइम नहीं. करेक्ट? यस. खर्चा नहीं लगना वहां पे कोई. अपनी गाड़ी से जाओगे, मुश्किल से 7-8 हजार का तेल लगेगा. एक दिन वहां रुकना है, टेंट नहीं है, किसी जान पहचान वाले का होटल है जो कि सिर्फ 1500 रुपए का कमरा है. एक दिन रुकेंगे, नहाएंगे, अगले दिन ड्राइव करके वापस आ जाएंगे. 10,000 रुपए पर पर्सन लगना नहीं है, क्योंकि एक गाड़ी में 6 लोग होंगे. 4,000 रुपए खर्चा आएगा और सबके पास है वो 4,000. टाइम नहीं. उसके बाद ना एक अजीब सा सवाल है उनके माइंड में, इतनी भीड़ में क्यों जाना है, ये सब क्या होता है महाकुंभ. यहाँ बैठे बैठे सवाल क्यों कर रहे हो भाई? 2 दिन निकाल के जाके एक्सपीरियंस करो ना. जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे कैसे पता लगेगा? सो वन ऑफ द biggest, I think, bad habits of corporate people that I have seen is they are always skeptical. They want a strategic, logical answer right now, sitting on their couch. तुम कौन हो मुझे बताने वाले कि मैं 2 करोड़ कमा सकता हूँ? अरे भाई मैं कोई नहीं हूँ तुझे बताने वाला. आई एम शोइंग यू अ जेनरिक पॉसिबिलिटी. नाउ यू टेल मी व्हाट इज योर डिजायर एंड लेट्स फिट दैट पॉसिबिलिटी इनटू इट, राइट? तभी तो बात बनेगी. और छोटा सा एक्शन नहीं लोगे तो बात नहीं बनेगी. सो यू थिंक दैट ओके, इफ आई डोंट हैव टू वरी अबाउट मनी, व्हाट विल आई बी डूइंग इन माय लाइफ? एंड देन यू रिवर्स कैलकुलेट हाउ आई कैन डू इट नाउ. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पता है जवाब कैसे होता है? आई वांट टू ट्रैवल, आई वांट टू रीड बुक्स. डिजायर्स कॉन्वर्सेशन में आती है. कॉन्वर्सेशन में आती है, राइट? आई वांट टू रीड बुक्स, मे बी आई वांट टू लर्न सम न्यू स्किल, राइट? मे बी आई वांट टू गो टू जिम. अगेन नॉट अ एक्सपेंसिव हैबिट, वेरी हेल्दी हैबिट एक्चुअली. बट आप सोच ही नहीं रहे हो उसके बारे में ना. सारी कहानी सोच में फंसी हुई है. सो इसीलिए ना दुनिया का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगता है, व्हिच वाज डन बाय नेपोलियन हिल, थिंक एंड ग्रो रिच. इट वाज अबाउट थिंकिंग. उसका पहला चैप्टर ही है बर्निंग डिजायर. Which is your burning desire that जिसको आप negotiate नहीं कर सकते हो. Problem is that कि जिस तरीके से हमें ट्रेन किया गया ना, हम आज भी slave ही हैं. Internally, we are told to do something and we do it because we think there is no way out. But आज की डेट में I think आज की अगर मैं 20 साल पहले सोचता ना, I would say कि बिजनेस मत करो, रिस्की है. 1 करोड़ की दुकान खरीदनी पड़ती है, माल रखना पड़ता है, उसके बाद नहीं चली तो नुकसान बहुत होगा. आज क्या प्रॉब्लम है बताओ? फोन सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है, लैपटॉप सबके पास है. अगर आप एक वीडियो एडिटर हो या लेट्स से आप एक स्ट्रेटजी कंसल्टेंट हो किसी बड़ी एमएनसी में, एंड यू वांट टू डू अ साइड हसल, आपके पास सैटरडे संडे तो है, राइट? ओके. And all you have to do is have a good conversation with your kids and wife, saying कि I'm gonna do some extra side hustle and I will need this more time from the family, so that after a year I can give you more time. I think कोई मना नहीं करेगा, right? All you have to do is reach out to 10 people on LinkedIn, send a message. This is what I do. I have free time on Saturday, Sunday. I am taking freelance work. If you need help here, let's do it. करेक्ट. शायद इनिशियल असाइनमेंट आपको 50,000 का मिलेगा. हो सकता है आपकी सैलरी 5 लाख है. शायद इनिशियल असाइनमेंट 50,000 ले लो ना, काम तो स्टार्ट करो. यू स्टार्ट देयर, राइट? अब मेरे को बताओ, अगर इन 10 लोगों ने रिप्लाई नहीं किया तो क्या नुकसान हो गया आपका? कोई नुकसान नहीं है. जीरो लॉस, राइट? मैक्सिमम आधे घंटे का नुकसान हुआ ना, राइट? राइट. और वो भी आपको समझ में आए कि एक एक्सपेरिमेंट हो गया कि अच्छा लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं इस मैसेज को. आधे ज्यादा लोग तो यहीं रुक जाते हैं कि यार रिप्लाई तो आता नहीं. बट दिस इज द टाइम व्हेन यू एक्सपेरिमेंट का आपका मैसेज सही था कि नहीं. दिस इज द टाइम व्हेन यू गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च कि अच्छा लिंक्डइन पे कौन सा स्क्रिप्ट काम करता है, राइट? या किस तरीके से मुझे अपना पीपीटी भेजना है, किस तरीके के लोगों को भेजना है.
यहाँ से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है. सो दिस इज योर लर्निंग फेज ऑफ गेटिंग योर फर्स्ट क्लाइंट. तो अगर आप 1 रुपए का सामान बेच सकते हो तो आप 10 लाख का भी बेच सकते हो. सेल्स में उतनी ही मेहनत लगती है. इट्स द सेम थिंग. 1 रुपए की टॉफी बेचने में भी उतनी मेहनत लगती है और $1 बिलियन का रियल एस्टेट बेचने में भी सेम मेहनत लगती है. इट्स द सेम थिंग. इट्स नेगोशिएशन. इट्स अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, गिविंग देम एन ऑफर, नेगोशिएटिंग. It's always the same thing. Sales is a life skill. It's a life skill, yes. बच्चों को भाई खाना खिलाना तो बेचना पड़ता है कि ये अच्छा खाना उनके अच्छा क्यों है, राइट? या फिर कुछ नहीं खाना है तो ये क्यों नहीं खाना है, सब कुछ बेचना पड़ता है. तो आई थिंक द क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ इज फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू हैप्पी राइट नाउ? एंड बी ऑनेस्ट अबाउट इट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन डिनायल, राइट? उसका एक एग्जांपल देता हूँ. लिसन टू योर कॉन्वर्सेशंस ऑन अ फ्राइडे नाइट विद योर फ्रेंड्स. What if I say that on Friday nights there are no friends because अब हो चुका है ऐसा, है ना? ठीक है. If there are no friends, then listen to your own internal conversation. जब आपको पता है अगले दिन ऑफिस नहीं जाना है, आप रिलैक्स्ड हो, आपका माइंड क्या सोच रहा है इस टाइम, एक्नॉलेज दैट ना. आधे लोग तो उन थॉट्स को एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं, उनको कभी पेपर पे नहीं लिखते हैं. पता नहीं, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि लैपटॉप्स इज वन ऑफ द बेस्ट वेज फॉर वर्क टू गेट, आपके साथ आता है फिर काम. तो लैपटॉप एक बार अगर आ गया तो फिर आपका कोई पुराना काम है, आप उसको वीकेंड में भी काम करते हो. आप एक्चुअली करते हो. सो बट आई थिंक टेक अ फ्राइडे नाइट. इफ यू ड्रिंक, आई डोंट केयर, बट यू थिंक. करेक्ट. बिकॉज सी, अगर जो जितना मैंने देखा है पहले कल्चर, राइट? सो इफ यू गो टू एनी सीसीडी ऑन अ सैटरडे संडे, वहां 4 कॉर्पोरेट के लोग बैठ के कोई स्टार्टअप प्लान बना रहे होते हैं. करेक्ट. मंडे तक वो स्क्रैप हो चुका होता है बिकॉज चारों में से कोई अग्री नहीं करता है. फ्राइडे को सब अपने बॉस को गाली दे रहे होते हैं. गलती किसी बॉस की नहीं है, उसके ऊपर भी तो एक बॉस है ना. अल्टीमेटली ही इज लाइक यू ओनली. द बॉस इज अनदर यू विद 2 years मोर एक्सपीरियंस, नथिंग एल्स, विद अ लिटिल मोर सैलरी. करेक्ट. सब अपने बॉस को गाली दे रहे हैं. करेक्ट. लेकिन मंडे को उसी बॉस के पास जा रहे हैं बिकॉज सैटरडे संडे आप रिलैक्स हो गए, आपकी फ्रस्ट्रेशन थोड़ी कम हो गई, शायद आपने हेड मसाज करा लिया, अब आप चिल हो गए, गाली गलौज आपने कर लिया फ्राइडे को रात को. बट अगर आपको फ्राइडे रात का शेड्यूल वो है ना जहाँ पे आप पिस्ड ऑफ हो, आपका मन नहीं लग रहा, यू रियली वांट टू गो आउट एंड ड्रिंक, देन यू आर नॉट हैप्पी प्रैक्टिकली. मुझे ऐसा लगता है कि अगर सारे 7 days ऑफिसेस ने अगर वर्किंग कर दिया, देन नोबडी विल वर्क. यस. सी, अभी उनको 2 दिन का गैप मिल जाता है तो वहां पे अपना फ्रस्ट्रेशन रिलैक्स हो लेते हैं और 5 दिन फिर हो जाते हैं. मंडे ब्लूज का टर्म ही क्यों है भाई? अगर इतने खुश हो जॉब में तो फिर मंडे ब्लूज क्यों होते हैं? अगर आपको मंडे ब्लूज होते हैं, गुड टाइम टू सिट एंड थिंक कि मुझे कुछ और करना चाहिए, राइट? आप मंडे को एक्साइटेड तो नहीं उठ रहे हो ना जॉब पे जाने के लिए. अगर नहीं उठ रहे हो तो प्रॉब्लम है, राइट? वी यूज्ड टू से इन आवर कॉलेज आल्सो, मैंने कहा यार हम तो खुश हैं कॉलेज जाके, हमें अच्छा लगता है. हम शुरू के 2 लेक्चर अटेंड करते हैं, उसके बाद चिल मारते हैं, बट हमें अच्छा लगता है कॉलेज जाना. नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं जाएंगे. It's also said that आपको जो एग्जाम्स के अंदर स्ट्रेस होता है बिफोर गोइंग एंड अटेम्प्टिंग एन एग्जाम, यू हैव द सेम काइंड ऑफ स्ट्रेस व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क. यस. So ये मैंने कहीं पे पढ़ा भी था. Because think of it, every meeting with your boss is a review meeting. It's like an exam. Every meeting you can get a pink slip. And you know there's a US-based statistics, very hidden, not viral on social media or ever. He said maximum heart attacks of the corporate people happens on a Monday morning between 8 to 10 a.m. The age group is 40 to 50 years age. Maximum heart attacks happens, right? Because they will better die than getting into a job. बट क्या होता है इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं. वन इज इनिशियली आप एंथुसियास्टिक होते हो, वो सारा प्रेशर आप झेल पाते हो, सब कुछ कर पाते हो. 10 साल आपकी लाइफ के बहुत प्यार से कट चुके होते हैं. उसके बाद ना फैमिली प्रेशर भी बढ़ने लगता है. गेटिंग मैरिड, हैविंग किड्स, पेरेंट्स गेटिंग ओल्ड, मेडिकल एक्सपेंसेस ग्रोइंग, more responsibilities, right? And as soon as you get married, there's extended family, right? उनके यहाँ भी बहुत कुछ हो सकता है. It is everything coming together now. राइट. सो जब तक आप रियलाइज भी नहीं करते ना, आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी सडनली 100 से 0 हो चुका होता है. सो बेटर इज दैट बिफोर दैट गेटिंग मैरिड, you should go through a journey which is even more tough but financially more secured. What is your message to those who are married, who are already having everything what you just mentioned? Can they also do something of this kind? I think yes. Now because you are not one, you are 2 people. If your wife is also into corporate along with you, conceptualize something together, think together, even better, because आप तो 2 हो अभी, right? Correct? And even if one person leaves the job and not earning very much, the home will still be safe.
Correct or not? Right. Right? Because I have seen in these kind of cases, mostly husband's salary is running the home and wife's salary is being invested. It's a good thing. Very good thing. Right? But then you have a better financial and risk-taking capacity. If your wife is a non-working wife, start training her to do something. Pick her interest. It can be dancing, it can be music, it can be English training, it can be anything. It can be baking. So Right. basically, even hobbies can be. Hobbies, I think, are the better way to leverage your skills because अब आपको मजा भी आ रहा है. Correct or not? So I have my cousin. I think बचपन में हम सोचते थे ये कुछ नहीं करेगी जिंदगी में, right? ये तो किचन में भी नहीं घुसती है. She wins every chef contest, man, in the country. She has a YouTube channel, got monetized, right? And I think her baking classes live on YouTube have millions of views. Okay. तो आइडिया है कि आपको नहीं पता आपके अंदर क्या क्या पैशन हैं. आपको पता ही नहीं क्योंकि आपने एक्सप्लोर नहीं किया खुद को. राइट. सो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कॉर्पोरेट में थे एंड दे स्टार्टेड अ संडे साइकिलिंग कम्युनिटी. संडे को सब साइकिलिंग करने चलेंगे. फ्री कम्युनिटी, कुछ नहीं करना. राइट. जस्ट अ व्हाट्सएप ग्रुप. संडे को साइकिलिंग करने चलेंगे एंड देन दे बिकेम फिटनेस कोचेस. उन्होंने धीरे धीरे करके फिर सर्टिफिकेशन लिया एंड दे बिकेम फिटनेस कोचेस एंड नाउ ऑल दिस साइकिलिंग कम्युनिटी बिकेम द फर्स्ट सेट ऑफ क्लाइंट्स. तो आप ये सोचो कि इसको इतना ईज में स्टार्ट करो कि आपको पेन ना हो. मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 2 लाख का कोई प्रोग्राम खरीदो, पहले ट्रेनिंग लो, नहीं. जस्ट पिक अप योर इंटरेस्ट, स्टार्ट बिल्डिंग सम पीपल अराउंड इट हु इज इंटरेस्टेड to know about you, right? And go to strangers, I would say, because sometimes the family members knows that where you quit, so they will be the first one to tell you तेरे से नहीं होगा, right? Because I think our family members are the most amazing people and they're the most dangerous people when you take a risk. Yes. They're looking forward to your safety. They don't want you to get hurt. They are the ones to stop you. Right. Every single time you take a risk, they are always scared कि अच्छा secure तो सब कुछ चल रहा है. हाँ. क्यों कर रहा है ये? अब इसने फिर कुछ कर लिया. पागल तो नहीं हो गए. हाँ, है ना. So अभी जैसे मैंने रिसेंटली मॉम को बोला अभी स्टूडियो बनाएंगे, पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे, ये वो. ज्यादा खर्चा तो नहीं है. मैंने कहा 1 महीने की कमाई लगेगी, ज्यादा नहीं. बन जाएगा. But you know, like from the pandemic time, because I think I got a very good time with my family during pandemic. Because उससे पहले मैं भी ट्रैवल कर रहा था and you know my father is a traditional business owner. उनके लिए 7 दिन दुकान खुला है. Yes. Right, so वो टाइम नहीं मिला कभी. So pandemic was a good time when they saw me working online and making money. So उनको कॉन्फिडेंस है. ये पैसा बनता है, राइट. बट यू नो ये कुछ ऐसा नहीं है कि लिंक्डइन से पैसा बनता है या यूट्यूब से बनता है. ये बहुत सिंपल है. यू हैव अ स्किल which can be converted into a service package or a solution to someone who needs it, and then you reach out to them. The good part is that sitting here you can work with someone in US, right, or UK, who might end up paying you 5,000 euros, 4 lakh rupees for the same kind of money which Yes. you earn in India. Yes. That's interesting. So again, सौरभ अगेन आपने आराम से बता दिया और यही है कि लेट्स से अगेन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द स्टार्ट्स, लेट्स से समबडी हु इज इन हिज 30s and who wants to earn money through a side hustle and he does not have any skill. Okay. क्योंकि उसकी जितनी भी स्किल सेट थी वो खींच ली पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो कर रहा है कुछ लेकिन वो उसको मजा नहीं आ रहा करने में. बट ही इज डूइंग बिकॉज ही इज फोर्सफुली हैज टू डू, बिकॉज यू नो ही हैज टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशन टू उसको अपने खर्चे वगैरह निकालना है. ठीक है. तो वो बंदा क्या कर सकता है अपने जिंदगी के अंदर, क्योंकि उसके पास नंबर 1 स्किल सेट है, उसको साइड हसल करना है, वो समझ नहीं आता करना क्या है. ठीक है. कैन ही अर्न मनी? Yes. I would say if you don't have any other skill, first of all, take a year to explore yourself. बट खर्चे कैसे निकलेगा फिर? नहीं, टेक अ ईयर इन द सेंस कि आप अपना जो जॉब कर रहे हो वो करते रहो, बट यू पुट आउट योर इवनिंग टाइम इन रिसर्च, टॉकिंग टू पीपल, अंडरस्टैंडिंग. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ही कैन गेट अ आइडिया कि चलो यार आई कैन बिकम अ पॉडकास्टर. व्हाई नॉट स्टार्ट टॉकिंग टू सम पॉडकास्टर्स and meet them on a Sunday and see the environment, feel the environment कि अच्छा ये मुझे एक्चुअली अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा. तो जैसे आप संडे को पॉडकास्ट शूट कर रहे हो, राइट, ओके, सो ये बंदा आपके पास आ सकता है कि यार मैं आपके पास संडे को आ जाऊंगा, आप चाहे मुझसे झाड़ू मरवा लो, I want to just be with you that day and have a feel factor कि ये कैसा है, right? Don't you think it's a good start? That's a very good start. Easy start, yes, right? अब अगर 2 बार आके उसको अच्छा नहीं लगा तो बोलो जी राम राम, ये अपने से ना हो पाएगा, मैं कुछ और देखता हूँ. करेक्ट.
अगर आप 6 महीना 1 साल ऐसे लगा लो, क्योंकि क्या होता है ना, जब वो करियर काउंसलिंग कॉलेज में होता था ना, उन्होंने ये चीजें करने को कभी नहीं बताई हमें। वो कहते हाँ आपके लिए ना ये अच्छा है, प्रैक्टिकली वो आपके लिए अच्छा नहीं था, वो कॉलेज एडमिशन के लिए अच्छा था, बिकॉज आप कॉलेज को पैसा दोगे। उन्होंने कभी जाके नहीं बोला कि जाओ मैकेनिकल इंडस्ट्री देख के आओ, बिकॉज अगर मुझे दिखाया होता कि वहां पे वेल्डिंग होता है, 54 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो मैं कभी नहीं लेता। राइट, ठीक है। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया पे किसी भी ढंग के बंदे के पास जाओगे ना और बोलोगे हाथ जोड़ के कि मुझे सीखना है, मैं आपको एक दिन देखना चाहता हूँ, मना नहीं करेगा, कोई मना नहीं करता। ओके, नोबडी सेज नो। मना कर भी देगा तो कर देगा यार, क्या होगा, 100 लोगों से बात करोगे, राइट। तो मना कोई नहीं करता, दैट इज अ गुड स्टार्ट। आप एक्सप्लोर करो कि आपको अच्छा क्या लगता है। अब उसके बाद का काम आता है कि ठीक है चलो अच्छा लग गया, मान लो यार ये बढ़िया है एंड आई थिंक आई कैन पुल इट ऑफ। अब आपको टेक्निकल स्किल सीखना है, राइट और नॉट। अब टेक्निकल स्किल सीखने का काम क्या है? अच्छा सोलोमन भाई मैं हर शाम को आ जाऊं 2 घंटे ऑफिस के बाद, गुड थिंग है ना, राइट। मैं आपके लिए गेस्ट ढूंढ दूं, मैं वेला होता हूँ शाम को, मैं आपके लिए गेस्ट ढूंढ दूं, मैं आपसे एडिटिंग सीख लूं, आपके साथ फ्री में काम कर लूं 6 महीना। अब यहाँ पे लोग फंस जाते हो, कहते मैं फ्री में काम क्यों करूं? भाई एक तो तेरे को कुछ आता नहीं, अब कोई तेरे को सिखाए भी और तू उससे पैसे भी मांगे, वो अच्छी बात तो नहीं है। तो लिंक्डइन पे हमेशा ये भसड़ मचती है, फ्री इंटर्नशिप क्यों, आप तो एक्सप्लॉइट कर रहे हो। नहीं भाई सिखा भी तो रहे हैं, उसे कुछ नहीं आता, वी विल ट्रेन हिम। या तो आपको क्या करना पड़ेगा, जाके कोई 2 लाख रुपए का कोर्स खरीदना पड़ेगा वीडियो एडिटिंग में। That is a choice you need to make, but I think if you can do both, buying a course and working practically, getting the experience, it's even better. Correct, है ना। अब आपके पास 6 महीने बाद 2 ऑप्शंस खुल जाएंगे, या तो आप सोलन भाई के साथ ही काम कर लो रेगुलरली, ठीक है, आई एम पार्ट ऑफ योर टीम, आई नो एडिटिंग, आप पॉडकास्ट शूट करो, गेस्ट बुलाओ, ये बैकएंड में पूरा देख लूंगा, ठीक है ना। यू गॉट इनटू योर पैशन फील्ड। अब आप 1-1.5 साल ऐसा ही काम करो, देन यू आर फ्री टू गो एंड ओपन योर ओन एजेंसी इनटू वीडियो एडिटिंग और होस्टिंग योर ओन पॉडकास्ट। अब आपने ठीक ठाक पैसा कमा लिया होगा कि आप ये सेटअप बना पाओ 5-6 लाख रुपए का, करेक्ट। इतना ही चाहिए लाइफ में, इतना तो करना पड़ेगा ना, मैजिक नहीं, ओवरनाइट मैजिक नहीं होने वाला। वही है कि प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट के अंदर सारे के सारे क्विक रिच स्कीम्स सबको अट्रैक्टिव लगते हैं। हाँ, और बट बताओ कौन रिच बना उससे? कोई भी नहीं बना। He goes to another rich get quick rich scheme, उसके बाद फिर से फंसता है। करेक्ट। तो वही है कि 99 रुपीज ऐसे करके निकलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक ही प्रोफेशन अच्छा है, सारे प्रोफेशन अच्छे हैं, बट मैं ये कहता हूँ कि फाइंड पीपल इन योर इंडस्ट्री। अब जैसे मुझे यूट्यूबर बनना है, राइट, आई केम टू नोएडा, किसी ने मुझे पॉडकास्ट पे बुलाया, फिर आपने बुलाया, फिर प्रवीण भाई ने बोला यहाँ आने के लिए, तो मैंने कहा मना नहीं करेंगे। वेरी गुड। आई डिड नॉट इवन ओपन द यूट्यूब चैनल। आपने कॉल किया, मैंने फोन पे बात की, ठीक है बैठते हैं। आई डोंट केयर कि यूट्यूब चैनल पे क्या है, बिकॉज ये अलग होगा, ये बिल्कुल अलग होगा, राइट। और वो यूट्यूब पे सबसे प्यारी बात पता क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आज कितने सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब पे कंटेंट जिंदगी भर जिंदा रहता है। इट्स ऑलवेज अलाइव, राइट। सो बहुत सारे लोग ना हर चीज को जज करते हैं। अभी सडनली पता क्या होगा, अगर उसको इंटर्नशिप भी करना होगा ना, तो उसे चाहिए रणवीर अलावाजिया की टीम पहले, भाई वो तो उससे बात ही नहीं करेगा। उनके पास आपको सिखाने का टाइम नहीं है। Correct. आपको सिखाने का टाइम उसके पास है जो खुद ग्रोइंग है, उसके पास जाओ ना पहले। थोड़ा एक्सपेरिमेंट ज्यादा होगा, हो सकता है आपका एक आधा बार आपका टाइम भी वेस्ट हो, वो बंदा भी ढंग का ना मिले शायद, दोनों चीजें हो सकती हैं, राइट। बट इतना रिस्क, दिस इज नॉट अ बिग फाइनेंशियल रिस्क, राइट, दिस इज ओनली योर टाइम विच यू ऑलरेडी हैव। तो उसके साथ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो फिर तो सही बात है, कुछ नहीं होगा। सो आई थिंक एक्सपेरिमेंटेशन एक पार्ट है, रिस्क फ्री एक्सपेरिमेंटेशन है, तो ये पूरा का पूरा। रिस्क फ्री एंड एक्सपेरिमेंटेशन के लिए अप्रोक्सीमेटली डेडिकेटेडली अगर दिया जाए तो कितना टाइम, और अगर मान के डेडिकेटेडली ना दे, हल्का फुल्का ऑफ एंड ऑन हो रहा है, स्विच ऑफ स्विच ऑन वाला मोड, बिकॉज होता है, नोबडी कैन गिव सडनली डेडिकेटेड टाइम टू समथिंग व्हिच दे आर ट्राइंग, उनका रहता है स्विच ऑफ, बिकॉज योर हैबिट्स आर डीपली इंग्रेन्ड। अगर आपको वो एक स्विच हो गया ना कि मेरे को करना ही करना है, वो आपके माइंड में सेट हो गया, तो एक तो आप डेडिकेटेड टाइम दोगे, ओके, फिर आप कैसे भी करके टाइम निकालोगे, राइट। और अगर मान लो वो नहीं भी हो रहा है और आप यू आर फ्लर्टिंग, सो आई से फ्लर्टिंग विद अ न्यू एक्सपेरिमेंट, फ्लर्टिंग विद अ न्यू करियर, अगर आप वो भी कर रहे हो तो भी 1.5-2 साल। और व्हाट इफ आई एम सेइंग दैट जो कर रहा है अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके साथ साथ और भी यार ये भी कर लेते, ये भी कर लेते, ये भी कर लेते हैं, ये भी होता है। उसको थोड़ी तकलीफ होगी, उसको मेरे दूसरे बिजनेस की जरूरत पड़ेगी, व्हिच इज माइंडस्मिथ। ही विल नीड थेरेपी एंड आई थिंक एनीबॉडी।
So Mindsmith is basically a brain health company, right? Started by one of my very good friends. I'm part of it from the very beginning. We have top 3 psychiatrists on as co-founders in the country. One is from AFMC Pune, Dr. Satyan Sharma. And I think in Gen Z, this problem of doing multiple things, which is called actually ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, right? Okay. I think this is what people need to first acknowledge कि मुझे है कि मैं 4 काम एक साथ करता हूँ, प्रोडक्टिव कुछ नहीं होता। मैं 4 प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ, खत्म कोई भी नहीं करता, तो स्किल कुछ नहीं हो रहा बेसिकली, राइट? अगर आप एक स्किल सीखो और उसी पे लगे रहो 1-2 साल, बिलीव यू मी, स्केलेबिलिटी बहुत आसान है। अगर आप एक ही चीज पे फोकस करो तो बिकॉज आपका इंटेंशन भी तो मैटर करता है ना, आपका एनर्जी तो उतना ही है ना, आपकी बैटरी खत्म हो जाएगी फोन की, राइट? सो ये ना फोन एप्लीकेशन जैसा है, बिहाइंड द सीन्स कितने ऐप चल रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा बैटरी कितनी जल्दी खत्म होती है फोन की या लैपटॉप की या किसी भी डिवाइस की, करेक्ट? सो आइडिया वही है कि कैमरा तो एक ही जगह फोकस कर सकता है, राइट? एक कैमरा एक जगह फोकस कर सकता है, हमें वैसा फोकस करना है। और अगर नहीं कर पा रहे हो देन स्टिल टेक हेल्प। इट कैन बी अ लाइफ कोच, इट कैन बी अ स्पिरिचुअल कोच, इट कैन बी अ साइकियाट्रिस्ट और अ थेरेपिस्ट। डू टेक हेल्प, इट इज इंपॉर्टेंट टुडे टू कीप योर ब्रेन ऑन फोकस, बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से वैसे ही बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। They are saying that social media is frying your brain. Yes, it is. हो रहा मैसिव तरीके से। And there have been research also जो कि ये बता रहा है कि 8 to 10 hours अब एवरेज टाइम हो गया है in some cases. बहुत सारे केसेस, बहुत कैसे केसेस के अंदर काफी लोग सोशल मीडिया को छोड़ भी रहे हैं. Those who understood कि this is very very active, but those who are knowingly unknowingly using, उनको आइडिया भी नहीं है कि उनके 8-10 घंटे निकल गए. Yes. And they are losing out on the sleep. Yes. They are not productive in the workplaces. Yes. They are having confusion कि कर क्या रहे अपने लाइफ के साथ, and they are having identity crisis at a very very young age. Quarter life crisis कहते हैं उसको. Yes. So I think if that is any case with any professional, correct, and I think any professional in the corporate world who's like, you know, feeling like stressed, feeling unhappy consistently, right? Want to do things but not able to do, should see a therapist. It's very important today. It is not about mental health anymore. It is about kind of a mental gym now, that it will help you build strength. आपको शायद कुछ खराब नहीं हुआ है अभी, बट आपको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, right? Also been said that brain, or you can say mind, is the most beautiful organ in the entire body. Yes, it is. If utilized properly, then it can do wonders for you. Yes. This is the only thing that is working actually, right? Correct. मतलब इसकी वजह से ही सब चल रहा है. A person is declared dead once the brain is dead. बाकी सब organs के बिना काम चल जाता है. और ये एक ही organ है जो replace नहीं हो सकता. हाँ. और ये भी बताया जा रहा है कि इस टाइम पे phones have hijacked the human mind. Yes. AI has come in and AI is doing a better job than human beings. Or one more question which I have for you is that in the age of AI where everything is happening, or majority of the layoffs are also happening because of AI, काफी लोगों को challenges इस बात को भी लेके हो रहा है कि यार हमारी नौकरी तो जा रही है, and at the same time हम अगर नए मार्केट के अंदर चले भी जाते हैं हम तो obsolete है, because AI is always upgraded. हमने तो इतने सालों में अपने को upgrade भी नहीं करा. Yes. करे तो क्या करें? कैसे पैसा कमाए? जवाब दीजिए. तो आई थिंक AI अगेन सी, यू नो, एक टाइम पे पता है जब कैलकुलेटर आया था ना तो मैथ टीचर्स ने स्ट्राइक की थी. ये कैलकुलेटर आ गया, मैथ्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी टीचर्स की. बट क्या स्कूल में मैथ टीचर्स नहीं है? है राइट. तो हमें ना ये समझना है कि टेक्नोलॉजी आ गई है ना. कंप्यूटर्स के साथ भी यही हुआ था. तो देखो ऑब्वियस सी बात है, अभी एजेंट्स आ गए हैं जो कि एक वर्चुअल एम्प्लॉय है जो 24/7 है. उसका प्रोडक्टिविटी आपसे 100 गुना ज्यादा है. वो छुट्टी नहीं मांगेगा, ब्रेक नहीं मांगेगा, बीमार नहीं होगा, वो कॉफी नहीं मांगेगा, कुछ नहीं मांगेगा. उसका खर्चा भी आपसे कम है, लाइक कंपनी के लिए, राइट? सो सीटीसी आपको लगता है कि आपका सीटीसी 15 लाख है, बट कंपनी के लिए वो 45 लाख है. इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉफी, एवरीथिंग दैट यू कंज्यूम, राइट? सो कंपनी, फॉर अ कंपनी इट मेक्स सेंस टू रिमूव यू एंड गेट अ एआई एजेंट इफ द वर्क कैन बी डन. अब आपको ये सोचना है कि ऐसा कौन सा काम है जो एआई भी नहीं कर सकता है, या फिर जहां पे एआई को भी ह्यूमन चाहिए. एडिटिंग कर सकते हैं. यस, एडिटिंग कर सकते हैं. वीडियो एडिटिंग. यस यस यस. देयर आर सम सॉफ्टवेयर्स. मैनी अभी तो भर के लाइक पूरा जो आप इसको YouTube पे डालोगे पूरे वीडियो को, आई विल जस्ट पेस्ट द YouTube लिंक, नॉट इवन डाउनलोड द वीडियो. इट विल गिव मी 20 रील्स विद कैप्शंस. ओके. विद इन 5 मिनट्स. बट उससे पहले जो बेसिक एडिटिंग है वो तो चाहिए होगा ना, उसके लिए ह्यूमन बीइंग्स की जरूरत पड़ेगी. वो बेसिक एडिटिंग भी चाहिए टूल को. तो अगर आप पूरा रॉ वीडियो भी डाल दोगे तो भी ऐसे 10-20 रील निकाल के दे देगा 2 मिनट में. देयर आर टूल्स. लेकिन अगेन
if you want to build your signature, your branding, your recall value, then you have to do custom editing for sure. वो शायद एक टूल नहीं करेगा, क्योंकि टूल के अपने फिक्स पैरामीटर्स, आप समझो एआई को ट्रेन करने में शायद अभी से ह्यूमन माइंड बिलियंस ऑफ ईयर्स से ट्रेन्ड है, एआई नहीं है अभी. सो देखो अगेन एवरीबडी नोज कि उसका जॉब ऑब्सोलीट होने वाला है कि नहीं. सो जब आपको पता है होने वाला है तो 1 साल पहले 2 साल पहले या आज आप जहां भी बैठे हो, राइट, स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू. बहुत सारे स्किल्स हैं. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, IT इंजीनियर फ्रॉम IIT Delhi who worked like 20 years in US came back to Rajasthan, his village. उनके फादर का काउ फार्म था पूरा, राइट, अ डेयरी फार्म. He organized it, used tech to do better revenues and better produce. He's doing 40 CR revenue a year. Wow. So that's what I'm talking about. आपको ये समझना है कि आपका नॉलेज, नया टेक, छोटी प्रॉब्लम, बिकॉज आज के इंडिया में प्रॉब्लम बड़े लेवल्स पे नहीं है ना, प्रॉब्लम छोटे छोटे लेवल्स पे है, राइट. फॉर इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड अगेन यहाँ पे स्कोप डेवलपमेंट सेक्टर का बहुत ज्यादा है. तो आई थिंक अगेन जो एआई, पता नहीं एआई क्या मतलब, जिस तरीके से बिल्डिंग्स आई थिंक वहां पर भी आ रहा है, robotics, yes, and the kind of way, the kind of output which you want, I think वहाँ पर भी आ रहा है. correct. So the problem which you are saying is very right, and at the same time the solutions, because India के अंदर solution की जरूरत है. Yes. We are a developing nation, which means developed जाना है हमें. Yes. Which means development के लिए हमें बहुत मेहनत करनी है. Correct. And I think you're absolutely right, because वहां पर हम लोगों को वो देखना है जहाँ पे what are the places where AI cannot do the things which human can. Yes. And but अगर आप देखोगे ना आज की डेट में, जैसे if I talk about medical insurance, right, आज भी हिंदुस्तान में सिर्फ 4% जनता के पास मेडिकल इंश्योरेंस, अब और कम हो गया है. राइट, ठीक है. कोविड के बाद लाइफ इंश्योरेंस कम हो गया, शायद लाइफ इंश्योरेंस कम हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस बढ़ गया था, ठीक है. तो हम टीयर 1 सिटीज में रहते हैं, हम लोग तो एआई आ गया, सब कुछ आ गया. टीयर 2 टीयर 3 में उतना नहीं है. अभी तो उन तक जाने में 10 साल लग जाएंगे. राइट और नॉट. लाइक माय वाइफ इज अ डॉक्टर, शी इज डूइंग हर MDS. उस कॉलेज में किसी को नहीं पता एआई क्या है, उनको ChatGPT खाली पता है, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एआई राइट नाउ. कि if they are doing their thesis and they need to do a lot of research and they need to find right set of people to help them, right, or connect with the world of doctors, they don't know anything because it is not, they're not trained for that. उनका काम क्या है, पेशेंट आएगा चेयर पे, उसका दांत फिक्स करना है, राइट, एंड दे हैव अ कॉमन दैट मशीन. अब उस मशीन में अगर रोबोटिक्स आ भी गया, ऑपरेट तो डॉक्टर को ही करना पड़ेगा ना. बिकॉज मेडिकल एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे 100% एआई पे अभी ट्रस्ट नहीं करेंगे लोग बहुत जल्दी से. अगर वो एआई काम भी करेगा तो डॉक्टर सुपरविजन में करेगा, उस एआई को प्रोग्राम तो डॉक्टर को ही करना पड़ेगा. जैसे मेंटल हेल्थ में वी आर बिल्डिंग एंटायर एआई टूल आल्सो, राइट, बट उसको हमें 1.5-2 साल लग गया इन टॉप डॉक्टर से ट्रेन करवाने में, राइट. रेप्लिकेशन होगा, बट क्या वो डॉक्टर का ऑल्टरनेटिव है? नहीं है. इट इज अ हेल्प when the doctor is not available. जब आपको रात को 2 बजे सुसाइड करने का मन करे ना, that is the time you can go on that tool and save yourself. What is the name of the tool? Tool अभी आएगा. So it is not live. MVP will be out in March, right? Okay. But idea behind building, एक आदमी सुसाइड करने से पहले भी ना 7 लोगों को बताता है. Indirectly. या मेरा जीने का मन नहीं कर रहा. बहुत कॉमन कॉन्वर्सेशंस होती हैं, इंसान कैच ही नहीं कर पाता. लेकिन ऐसे में कभी कभी लेट्स से एंजाइटी अटैक हो रहा है, पैनिक अटैक हो रहा है, रात को 2 बजे हो रहा है, व्हाट टू डू? You need some guidance, you need someone to talk, you need someone to connect. That's what we are building this AI tool for. तो and उसमें और भी बहुत कुछ है, like I am not part of the entire. I would like to have a conversation on this particular aspect because मेरा मतलब one of my favorite topics is to talk on mental health, ADHD, and the ultimately the different neurological conditions of the brain. मेरे को बहुत personally interest भी करता है because ultimately this is related to healthcare और ये मेरा one of my podcast के अंदर मेरा favorite section भी है ये. So yeah, I would love to have your doctors who are on. Definitely, I'll connect you with them. So वो एक बहुत प्यारा part है. I think Dr. Satyan has a very amazing way to explain these things and simplify it also. Right. I'm not the right person to talk. But I think whatever I have understood from people today is that stress is normal. Everywhere there is stress, right? And it is building faster and faster. People are not taking help. Sometime in ego that I can manage it myself. Sometime in a sense that, oh, this is normal. They have accepted it again. Why to accept something which is not normal?
एक बार फ्री होने का एक्सपीरियंस तो लो. So I have gone through many educational programs. So I think अगर किसी को पैसा खर्चा करना हो ना कोर्सेज पे या किसी चीज पे, या तो लाइफ स्किल्स पे पैसा खर्चो. लाइफ स्किल कैसे, जैसे सेल्स इज अ लाइफ स्किल. आप कोई भी प्रोडक्ट बना लोगे अल्टीमेटली बेचना पड़ेगा. तो टेक फाउंडर्स को यहाँ बहुत दिक्कत होता है, राइट? योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर बॉडी लैंग्वेज, योर ड्रेसिंग सेंस, राइट, योगा, इन सब पे पैसा खर्चा करना चाहिए डेफिनेटली सीखने के लिए. एंड लर्न इट नॉट ऑनलाइन सिंगुलरली, लर्न इट इन रिट्रीट्स. सो यू गेट अ ग्रुप ऑफ पीपल. अब वो ग्रुप ऑफ पीपल में, जैसे कल रात हमने ना अगस्त में मुंबई में एक मीटअप किया था, एंड एक बंदा वहां पे आया था, शौनक. कल वो मुझे मैसेज करता है, he said, Saurabh, I met this group of enthusiastic people, and I connected with some of them, then I met one to one these people, and मेरा एक 15 साल पुराना ड्रीम था that I materialized now. That's interesting. That's a power of living with the right set of people. इसको masterminds कहते हैं, right? इसको कुछ नहीं बोलते अभी. This is not mastermind. This is basically, breaking from your common culture to a different space. Who are not thinking this. Okay. So, for example, let's say you are unhealthy right now, you are overweight and all, and you want to reduce weight. Rather than paying 50,000 per month or 50,000 for a quarter to a health coach who will guide you online, book a 3 days retreat in Rishikesh in a yoga camp, which is also cost you 50,000. But 3 days you will actually get into that environment. Your wiring will change then, and you will meet 50 people. That WhatsApp group will be there, and you can connect with them. So ऐसे cases में कभी-कभी, let's say if you are thinking of doing anything in the fitness world and you need experts, you will find your partners there. फिर easy हो जाता है काम करना. See, think of it ना, आप ऐसी फैमिली में हो जहाँ सब सरकारी ऑफिसर्स हैं, and suddenly one day you stand चाय पे, मैं ना बिजनेस करना चाहता हूँ. क्या बोलेंगे वो आपको? बहुत गंदा रेजिस्टेंस है ना. हाँ. वो रेजिस्टेंस आएगा. लेकिन सेम चीज आप बात करो 10 बिजनेस ओनर्स के बीच में बैठ के कम्युनिटी में, तो कहेंगे वाओ, बता आइडिया क्या है, लेट अस हेल्प यू, राइट? सो आपको वो बात भी सोचना है कहाँ बोलना है बैठ के. सो इसलिए मैं हमेशा यही करता हूँ, आई गो टू एजुकेशनल प्रोग्राम्स विच आर हैपनिंग आउटसाइड माई सिटी. एक तो शहर के बाहर नेटवर्क बनता है, करेक्ट. दूसरा, वो कंसिस्टेंट नेटवर्क, आपका कॉमन पॉइंट क्या है, वो प्रोग्राम. सो फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पे एक वो है, प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकिंग क्लब्स भी हैं. बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जहाँ पे आप कनेक्ट करते हो किसी और एजेंडा से. एंड देन हमने बहुत बार सोचा, जैसे स्टार्टअप इवेंट्स हम करते हैं, सो कॉर्पोरेट के लोग, हम क्या करेंगे वहां पे, हम तो स्टार्टअप में नहीं है. आओ तो सही, तुम्हारी जरूरत एक स्टार्टअप को है, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट इन समथिंग. शायद आप ईमेल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, शायद आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सपर्ट हो, शायद आप HR में एक्सपर्ट हो. अ स्टार्टअप माइट नीड यू. Come and explain what you know. That's the only job you need to do, right? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना उस ग्रुप में जाके सीखो. ऑनलाइन मत सीखो अभी. ऑनलाइन सीखने से प्रॉब्लम है कि नेटवर्क नहीं बनता, खर्चा आप उतना ही कर रहे हो. You're right. तो हम is your network. हाँ, तो हम अपनी कम्युनिटी के लिए यही करते हैं, हम सिखाते हैं ऑनलाइन है, बट मैं जिस भी शहर में जा रहा हूँ उस शहर के लोगों को बुला लूंगा, रात को आओ डिनर करते हैं. अच्छा. या फिर संडे को पूरा दिन साथ रहते हैं. राइट, वी बुक अ गुड प्लेस जहाँ पे हम पूरा दिन बैठ सकते हैं, बकर कर सकते हैं, राइट. और कुछ नहीं तो कॉफी शॉप वाले को 10,000 रुपए सुबह पकड़ा दो, भाई शाम तक 20 लोग आएंगे, मैं उठाना मत, ऑर्डर देते रहेंगे, बाद शाम को हिसाब कर लेंगे. वी डू इट ऑल द टाइम, बैंगलोर में, बॉम्बे में, चेन्नई में, जयपुर में, दिल्ली में. So what do you do these in this meetup? होता क्या उसके अंदर? कुछ नहीं, बकर करते बैठ के, नो एजेंडा. No agenda. Just know each other, have cup of coffee. अच्छा. And we very strictly say don't talk your profession today. Oh. So कोई बोलता है यार मैं ना like a guy recently I met in Chandigarh. He said मैं पूरी दुनिया में साइकिल पे घूम सकता हूँ, मुझे कहीं भी भेज दो, साइकिल पे जा सकता हूँ. Wow. He is running a cycling community now. अच्छा. Right. He started in Chandigarh, correct? उसको साइकिल पे घूमना है. इससे यार ये स्ट्रेस भी कम करती है, बॉडी वेट भी सेट रखती है, और मैं कम्यूट भी कर लेता हूँ, और मुझे ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी नहीं होता, क्योंकि आजकल बहुत जगह साइकिलिंग लेन्स हैं, तो आई एम फ्री. उसको वहां फ्रीडम मिल गया. अभी वो पैसा कमा रहा है, नहीं कमा रहा, मोनेटाइज कर पाएगा, यस, बट ही इज एंजॉयिंग, ही इज हैप्पी. नहीं, ही इज एंजॉयिंग. ही स्टार्टेड डूइंग फिटनेस रिट्रीट्स. अच्छा, थ्रू कोलैबोरेटेड विद अ फिटनेस कोच. एंड चलो ठीक है, हम काजीरंगा चलेंगे, चलो हम किसी नेशनल फॉरेस्ट में चलेंगे, या माउंटेन्स पे चलेंगे. स्टार्टेड डूइंग रिट्रीट्स. द रिट्रीट पर पर्सन कॉस्ट लाइक $70,000. 10 लोग गए तो 7 लाख का रेवेन्यू है. 1-1.5 लाख तो कमाई लेगा प्रॉफिट का.
right? सही बात है. So I think you have to connect with people to open up your mind. Rational mind को तोड़ने में टाइम लगता है. बहुत टाइम लगता है. क्योंकि आपका जो ट्रेनिंग है, आप सोचो ना यार, आप 300 घंटे काम कर रहे हो महीने का, रोज का 10 घंटे, एंड आपको 2 लाख सैलरी मिलता है, मान लो. आई एम टॉकिंग ऑन हायर साइड, राइट? क्योंकि इंडिया में आज भी 98% लोग 1 लाख से कम ही कमाते हैं. 98% लोग right. 1 लाख से कम ही कमाते हैं, राइट? आई एम टॉकिंग ऑन हायर साइड. अब सडनली मैं आपको बोलूँ यार, मेरा ना क्लाइंट है, उसके साथ में 2 घंटे कॉल पे आ जाओ, 2 लाख रुपए मैं दे दूं, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट. करेक्ट. सो जैसे आपने अभी ये पूरा यूट्यूब चैनल स्टूडियो बनाने में मेहनत किया, तो आपको पता है क्या चाहिए एक स्टूडियो बिल्ड करने के लिए. एंड अगर एक बड़ा बंदा, कोई बड़ा ब्रांड मुझसे पूछता है कि हमें ना इन हाउस स्टूडियो बनाना है, वी स्टूडियो कंसल्टेंट, करेक्ट? व्हाई कांट यू आस्क 1 लाख फॉर दैट 1 hour कॉल एंड टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट कि ये रिक्वायरमेंट लिस्ट है, ये प्रोडक्ट्स खरीदने, ये इंस्टॉलेशन के लिए बंदा लगेगा, मेरी जरूरत है, मैं आ जाऊंगा फिर. करेक्ट. उसको डाइजेस्ट ही नहीं होता. तो नहीं यार, 300 घंटे काम करना पड़ता है 2 लाख के लिए, तो ये 1 घंटे में कैसे मिल रहा है? तो जो उनका माइंड है ना, वो रिजेक्ट करता है उस पैसे को, उस ओपननेस को रिजेक्ट करता है, राइट? सो हमें सुबह उठ के टेंशन नहीं होता है कि पैसा कहाँ से आएगा, मुझे बता दे, राइट? बिकॉज हमने क्लाइंट्स के साथ भी यही किया. बिकॉज जब कंटेंट मार्केटिंग में आना, तो बड़ा अजीब से रेट्स सुनने को मिले मुझे. पर वर्ड कितना लेते हो, पर मिनट वीडियो कितना लेते हो. मैंने कहा नहीं, मैं बनिया हूँ, मुझे इतना कैलकुलेशन नहीं होगा मुझसे. तुम्हारा कंटेंट का साइज बताओ, ओवरऑल कितना होगा, पेज बताओ, पेजेस कितने होंगे. 50 पेज. मैंने कहा 50 पेज 50,000 रुपए. कहते वो कैसे कैलकुलेट किया? मैंने कहा ये कॉस्ट वही है जो तुम दे रहे थे, मेरे कैलकुलेशन का तरीका अलग है. इट्स अ थंब रूल्स. मैंने कहा देसी थंब रूल्स हैं. सो आई थिंक कभी कभी लोग कॉस्टिंग में मार खा जाते हैं, पैसा नहीं कमा पाते बिकॉज कॉस्टिंग में मार खा रहे हैं. वो फंसे हुए हैं 1 रुपए पर वर्ड के पीछे. भाई बल्क पूछो कितना है, गिव देम अ बल्क डील ताकि रिटेनर बना रहे, वो जरूरी है, राइट? एंड सर्विस देम लाइक हेल. फिर भगवान की तरह सर्विस कर दो क्लाइंट की एक बार. लाइक अगर आपको रिटेनर मेंटेन करना है, नहीं तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे. फिर आपको हर रोज खड्डा खोदना पड़ेगा और हर रोज क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा. वो नहीं करना. क्लाइंट ऐसा ढूंढो जिसके पास लॉन्ग टर्म काम हो, राइट? बीच में छोटा छोटा वन टाइम भी हो, करते रहो, लेकिन एट द एंड बिग मनी इज इन द रिटेनर्स. ऑलवेज. जिसका 12 महीने का काम हो, 2 साल का काम हो. एंड मैं तो अपने क्लाइंट्स का माइंडसेट करना स्टार्ट कर दिया. मैंने कहा अच्छा, आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, आपको ये जर्नी कंप्लीट करना है, व्हाट्स योर गोल? 2 साल चाहिए मुझे, और यहाँ तक इतना पैसा लूंगा, उसके बाद इतना, उसके बाद इतना. बट मैंने देखा है, I also sometimes don't increase that price because I've started loving working with that client. वो भी जरूरी है, बिकॉज उससे आपका ग्रोथ भी हो रहा है, राइट? एंड बिकॉज आपको तंग नहीं कर रहा, तो आप मेंटली पीसफुल हो, वो बहुत जरूरी है. हाँ, बिकॉज अगेन आपका वो एक क्लास क्लाइंट हो जाएगा जो आपको परेशान नहीं कर रहा, एंड एट द सेम टाइम ही इज फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शंस एंड इज गेटिंग द रिजल्ट्स. यस. तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है. ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है. नॉर्मली एक बार पैसा दे दो, कहता है अपना तेरे को ओन कर लिया, करेक्ट, now you have to follow my instructions. Yes. वो बहुत गलत हो जाता है. So I think like we have to really work upon some communities, you know, join some spaces where people openly talk about money, because पैसे का conversation ही नहीं होता हमारे यहाँ. like hardly लोग ना, मतलब पैसा कमाते हुए छुपाते हैं ज्यादा. हाँ, लोग छुपाना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते. दिखाना भी चाहते हैं तो लाइक इन अ वेरी डिफरेंट वे. वो नहीं बोलना चाहते कि मेरे पास पैसा नहीं है या मैं लोन में हूँ, and it is painful. So they don't go to for example, सोचो अगर आपको बुखार, तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? क्योंकि हेडेक है, स्ट्रेस हो रहा है ना, बॉडी काम नहीं कर रही है, बॉडी पेन है. तो आप फाइनेंशियली भी तो पेन में हो ना, जाओ ना एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के पास. वो आपको बताएगा लोन से बाहर कैसे आना है, वो आपको मनी कॉन्वर्सेशंस में तो घुसाएगा, right? And I think anybody who's listening to this, there is a series on Netflix again, How to Get Rich. Very amazing series if you want to understand how to have conversations around money. Ramit Sethi, yes. Very nice series, I think. There are a lot of bad reviews also about Ramit Sethi himself, but I think the series has nothing bad. It will actually help you understand how to have conversations around money. पैसे के अराउंड conversations ही नहीं होती है. वाइफ को नहीं पता होता हस्बैंड के पास कितना पैसा है, राइट? एंड आई थिंक न्यूक्लियर फैमिली में कुछ वो ईगो फाइट भी हो गया, मेरा पैसा तेरा पैसा. फैमिली पैसा नहीं है कुछ भी. आई थिंक एयरटेल वाला करना चाहिए वापस, फैमिली प्लान. जो तेरा है वो मेरा, जो तेरा है वो मेरा है. एग्जैक्टली, राइट? तो आई थिंक इट शुड बी फैमिली मनी, राइट? लाइक टिल डेट, लाइक आई लिव अ बिट न्यूक्लियर फ्रॉम माय फैमिली, राइट? मैं शिफ्ट हुआ चंडीगढ़,
बट जो भी मैं कमाता हूँ ना, मैं उसको फैमिली मनी की तरह देखता हूँ. मैं उसको ये नहीं देखता कि ये मेरा पैसा है तो इससे मैं भाई के लिए क्या करूँ या पापा मम्मी के लिए क्या करना है, या पापा मम्मी का खर्चा भाई करेगा या मैं करूंगा. आई डोंट सी इट दैट वे. आई सी इट एज फैमिली मनी. इट इज आवर मनी, राइट? क्योंकि वो माँ बाप ने और बड़े भाई ने अगर मेरे लिए कुछ ना किया होता तो मैं कमा रहा होता क्या? सही बात. बिकॉज वो काम कर रहे थे तो मेरा रिस्क टेकिंग और एक्सपेरिमेंटल कैपेसिटी बहुत ज्यादा था, राइट? तो आज क्या बोलूं, अभी मैं कमा रहा हूँ तो ठीक है, अभी तुम जाओ, हो गया मेरा. वो नहीं. तो ये हो रहा है दुनिया में. आई हैव सीन इट हैपनिंग. I have seen a lot of females who are doing good in the corporate world, and let's say they want to start a business and they need 5-10 lakhs. The husband has it. He have the capacity to pay that, but नहीं, husband से नहीं लेना. अच्छा, ओके. अब वो ईगो फाइट में क्यों फंसे हो? मतलब क्या क्या डाउन हो जाएगा? आप एक सड़क पे चलते इन्वेस्टर से पैसा मांगने को तैयार हो, भाई हस्बैंड को इन्वेस्टर बना लो ना, गिव हिम इक्विटी, राइट? हस्बैंड भी कोई कॉर्पोरेट एक्सपर्ट है, वो भी आपको गाइडेंस देगा. बट चक्कर क्या है, हस्बैंड से नहीं लेना है, पापा से नहीं लेना है. मैंने कहा भाई हमारे घर में एक चीज बहुत क्लियर सिखाई गई थी, पैसा चाहिए लो, काम करके आरओआई निकालो. इट इज नॉट अबाउट यू टेकिंग मनी, इट इज अबाउट हाउ मच यू कैन गिव बैक, राइट? एंड हाउ मच यू कैन क्रिएट. अगेन वो जो मनी अवेयरनेस, मनी साइकोलॉजी एंड मनी से रिलेटेड जितना भी कॉन्वर्सेशन आई थिंक हैपेंस प्रीटी मच इन द बनिया फैमिली. हमारे यहाँ पैसों को लेकर बहुत खुली बात होती है. खुली बात होती है ना, है तो भी, नहीं है तो भी. हाँ, that's a very good thing. नहीं होता ना, बहुत बुरी तरीके से सोचता, अरे नहीं है. जब होता तो फिर दिखाने वाला होता है. एंड अगेन दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन फ्रॉम कल्चर टू कल्चर. यस, देखा जा रहा है और ओपनली बात कोई नहीं करता. पैसों को लेकर कोई भी नहीं बात करता ओपनली. सो वन ऑफ आवर मेंटर्स टोल्ड मी, नो सौरभ, तू हेल्प करना चाहता है ना, गरीब की हेल्प मत कर, मिडिल क्लास की कर. ये बेचारा के पास जब पैसा नहीं होता ना, ये तो रेडी भी नहीं लगा पाता. गरीब तो रेडी लगा के कमा लेता है. और आज की डेट में भाई गोलगप्पे वाला भी 40 लाख कमा रहा है साल के, बहुत आराम से. वो तो मीम्स भी आते रहते हैं. मीम्स नहीं, अभी चेन्नई में रेड पड़ी है भाई उस पे इनकम टैक्स की. हाँ. यूपीआई ट्रांजैक्शन से उसके 40 लाख थे, तो उसके ऊपर कैश तो पता ही नहीं, राइट? यस, यू आर राइट. करेक्ट और नॉट, राइट? सो वो बंदा ज्यादा खुश है, करेक्ट? लाइक अभी मैं कश्मीर गया था ट्रैवल करने, हमारा टैक्सी ड्राइवर, उसकी बेटी एमबीबीएस है. वाह, राइट? बेटा शेफ है. तो बहुत महंगा होता है. एमबीबीएस बहुत महंगा होता है, राइट? बेटा शेफ है, करेक्ट? 40 लाख की गाड़ी वो अपनी ओन करके चलाता है. He told me, he said, कश्मीर में सब लोग सिंपल हैं, गरीब नहीं है. सब बिजनेस ओनर्स हैं, सबके पास जमीन है, खेती है, राइट? चाहे टैक्सी चलाते हैं, अच्छा कमाते हैं. ऊपर गए जो वो होते हैं ना आइस कार्ट्स वाले, आइस मोटर बोट्स एंड ऑल, ये सब चीजें वाले, वो भाई साहब 6500 रुपए पर पर्सन, 15 मिनट का राइड. 6500 रुपए पर पर्सन, 15 मिनट का राइड. बाप रे, लाख रुपए रोज के कमाते हो बंदा हिसाब से. और ये ऑल सीजन, एटलीस्ट द स्नो सीजन 4 months. दैट्स गुड भाई. 20 लाख रुपए महीना हो गया फिर भी, गुड मनी, राइट? वो स्ट्रेच भी रहेगा. तो इंडिया के जितने टूरिज्म प्लेसेस हैं आज की डेट में, स्पेशली स्पिरिचुअल टूरिज्म इज सुपर ग्रोइंग इन इंडिया. इफ यू कैन डू समथिंग देयर, यू हैव अ बिग शॉट टू डू राइट नाउ, राइट? आई थिंक सरकार आपके लिए सब कुछ कर रही है, प्लेटफॉर्म बना के दे रही है. तो अभी कल किसी कॉन्वर्सेशन में कोई पूछ रहा था, कहते सरकार को क्या कुंभ मेला पड़ी है, इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहिए, ये करना चाहिए. मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैडम आप ड्राइव करके कितना लंबा गए हो इंडिया में कभी? कहती नहीं, मैं तो नोएडा दिल्ली जाती हूँ. ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस. मैंने कहा प्रयागराज तक जाके तो देखो, चेन्नई तक जाके तो देखो, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर समझ कहाँ आया अभी? मैंने कहा लद्दाख में भी ना एकदम प्लेन रोड है, शीशे में शक्ल देख सकते हो उसमें. इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है. और जिस कुंभ मेला की आप बात कर रहे हो, वो 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू बिजनेस है सरकार के लिए. उसी से ये इंफ्रास्ट्रक्चर और बनेगा कल को, राइट? और जो रिलीजन है, जो सेंटिमेंट्स हैं, वो तो जुड़े ही रहेंगे, राइट? तो लोग ना यहाँ बैठ के बतियाना चाहते हैं. कॉर्पोरेट के लोगों का प्रॉब्लम है, उनको मीटिंग रूम्स और स्ट्रेटेजी डिस्कशंस की आदत है. एक्शन कम होता है, एक्सपीरियंस कम लेते हैं. बिकॉज जैसे आप एक्सपीरियंस ले लोगे ना, आवर माइंड इज अ वेरी ब्यूटीफुल रबर ऑल्सो. तो एक बार आपने, अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे थे, गलती से एक शॉट लग गया ना, आपको किसी कंसल्टेशन कॉल पे 1 घंटे के 50,000 मिल गए, आपका माइंड वापस नहीं आएगा, दोबारा चाहिए. वो शेर के मुंह में खून लग जाता, तो आपको दोबारा चाहिए. तो आप उसको ना एक्सपीरियंस दो, राइट? सो जब मेरी जेब में 100 रुपए भी नहीं होते थे ना, एकदम बहुत डिप्रेस था कि सारा पैसे नहीं बन रहे लाइफ में. 24-25 साल की एज रही होगी. मैंने मर्सिडीज की शोरूम में फोन किया, मेरे को टेस्ट ड्राइव करना है मर्सिडीज E250. कहता लाइसेंस है? मैंने कहा लाइसेंस तो है. मैंने उन्हें बुलाया,
एंड मुझे नहीं पता था वो गाड़ी ऑटोमेटिक होती है। अच्छा। तो कहता आपने ऑटोमेटिक गाड़ी कभी चलाई है? मैंने कहा नहीं। कहता फिर? मैंने कहा भाई मैनुअल तो आती है चलानी, तो बता दे मैं चला लूंगा। बिलीव मी, वो एक्सपीरियंस में कभी भूल नहीं पाया। दैट एक्सपीरियंस गिव मी किक दैट नाइट, यार ये चाहिए, ये दोबारा चाहिए, राइट? आज मेरे पास उतना पैसा है कि मैं खरीद सकता हूँ, पर मैं नहीं खरीदता, क्योंकि अभी और चीजें हैं जो जहाँ पैसा का रिक्वायरमेंट है। सिर्फ पैसा होने के बाद भी ना, यू हैव टू रियली प्रायोरिटाइज वेयर यू पुट योर मनी। लग्जरीज खरीदना बहुत आसान है, बर्बाद कर देगी लेकिन आपको। वो ये देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पैसा कमाना एंड पैसा बनाना, पैसा मैनेज करना और उसको ग्रो करना, yes. राइट? अभी का मेरा टाइम ये है दैट आई हैव टू इन्वेस्ट ऑल माय मनी टू द ग्रोथ। कि जो आज अगर 5-10 लाख रुपए बन रहा है, तो इस महीने का 1 करोड़ कैसे बनेगा? अभी वो फोकस है, क्योंकि अगर महीने का 1 करोड़ बन गया तो मर्सिडीज तो कैश डाउन आ जाएगी। करेक्ट है ना? आइडिया वही है, राइट? सो मैं वही कहता हूँ कि आप पहले स्किल से पैसा बनाओगे, फिर पैसे के बारे में सीखोगे, फिर कुछ गलतियां करोगे ही करोगे। जब वो गलतियां करो ना, तो मेक श्योर कि कोई दोस्त हो आसपास जो समझदार हो। जैसे मेरे पास हमेशा प्रवीण होता है, राइट? ठीक है, तो मेरे दिमाग में जब भी कोई खुराफाती आइडिया आता है ना, मैं पहले प्रवीण को फोन कर लेता हूँ, फिर वो मुझे अपनी गलतियों से और एक्सपीरियंस देता है। देख मैं ये गलती, तो ये वो लोग हैं जो आपको ना मना नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे तू बेवकूफ है मत कर। वो कहेंगे हाँ इतना पार्ट इसका अच्छा है, यहाँ पे गलती होने के चांस है, यहाँ खड्डा है, तो वो आपका गूगल मैप बन जाएंगे थोड़ी देर के लिए। अब वो गूगल मैप की बहुत जरूरत होती है इस एरिया में, राइट? बिकॉज आप अननोन रास्ते पे जा रहे हो ना। तो गूगल मैप जैसे कुछ अच्छे दोस्त बना लो, एंड जो लोग बोलना चाहें कि लिंक्डइन पे सोशल मीडिया पे ये दोस्त नहीं मिलते, मेरे फोन में 5000 नंबर हैं, सारे सोशल मीडिया से, और सारे अच्छे दोस्त हैं। किसी भी शहर में जाता हूँ, होटल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, घर में रुकता हूँ किसी की। बहुत बढ़िया। रिश्ते कमाए हैं, रिश्ते बना लिए, टाइम कमाया, अब पैसा कमाएंगे। सो यार बहुत प्यारी डिस्कशन थी, एंड मेरा बस यही सवाल है कि या तो फिर हम लोग ऑफिस के अंदर तो बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं, और जब घर पर आते हैं तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बट अगेन द बैलेंस बिटवीन द टू इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। Yes. A parting message for our listeners from your side. I think इंसान है हम, इमोशंस के साथ ही पले बड़े, हमारे इमोशंस ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं। वी आर इमोशनल डिसीजन मेकर्स, सो टेक सम इमोशनल डिसीजंस जो कि आपको यहाँ से लेने हैं, स्पेशली व्हेन यू आर राइटिंग योर गोल्स। डोंट यूज द लॉजिक। दुनिया घूमना चाहते हो तो लिखो एक कागज पे कि मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। शायद आप दुनिया घूमने में 10 कंट्रीज घूमना चाहते हो, राइट? बट आपका ब्रेन ना उसी टाइम पूछेगा तेरे पास पैसा है क्या, तेरे पास टाइम है क्या? थोड़े टाइम के लिए उसको सप्रेस करो, राइट? देन यू फाइंड अ मेंटोर हु कैन हेल्प यू, एंड यू नो देयर आर सम एक्सपर्ट्स यू विल ऑलवेज नीड बाय योर साइड, एंड काइंड ऑफ दे आर फ्री मोस्टली, राइट? If let's say you want to have a spiritual guru for free, volunteer with them. पैसा नहीं तो टाइम दो, पैसा है तो पैसा दो, राइट? ओके। सेकेंड इज अ साइकेट्रिस्ट, लाइक अगर किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दोस्त बना सके तो बहुत अच्छी बात है, राइट? या फिर कोई ऐसा इंसान हो जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, जैसे आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, राइट? ओके। दिस पीपल आर प्रीटी ओपन माइंडेड टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड लॉजिक, क्या फंसे कहाँ हो। सो ऐसे दोस्त आपको बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद आपका फाइनेंशियल प्लानर। सो CPFs जो होते हैं लाइसेंस, दे कांट चार्ज यू अ फी फॉर दैट, बिकॉज उनको जो भी वो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स या जो भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं, वो उनको पैसा वहां से मिलता है। सो यू हैव दीज एक्सपर्ट्स अराउंड यू, एंड योर CA is not your CPF. मोस्टली लोग मेरा CA है, मेरा फैमिली CA है, नहीं है। So there's a difference between the CA and the CP. Lot of difference. Okay. Because अगर एक CA, मेरे फादर का CA अगर फाइनेंशियल प्लानर अच्छा होता, तो फिर मैं मल्टी मिलियनर होता। मेरे फादर ने बहुत पैसा कमाया, राइट? बट मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन बिजनेस ओनर्स के CAs को फाइनेंशियल प्लानिंग एडवांस में अच्छी आती थी, द बिजनेस ग्रू वेरी वेरी वेल। सो योर एंटायर लाइफ यू नीड अ गुड फाइनेंस पर्सन विद यू, एंड मोस्ट ऑफ दीज पीपल कम फॉर फ्री, राइट? और you join these communities. Ask your questions. Can you name a few communities? So see, communities, I think always create this community where फेसबुक पे आप जाओगे, आप रेडिट पे जाओगे, सो हिंदुस्तान में हो तो यू नीड इंडियन कम्युनिटीज, राइट? ओके। सो उसमें कुछ कम्युनिटीज पेरेंटिंग के आसपास भी होती हैं, राइट? सो कभी कभी ना एजेंडाज मिक्स होते हैं कम्युनिटीज में। सो
अंडरस्टैंड, फाइंड कम्युनिटीज दैट आर नॉट वेरी बिग, फाइंड कम्युनिटी जहाँ पे सर्कल छोटा है, लोग वैल्यूएबल है, एंड किसी भी कम्युनिटी को आप ज्वाइन करोगे, अगेन इट इज नो रिस्क, कोई आपसे पैसा नहीं मांग रहा है, ऑब्जर्व देम फॉर 1 month 2 month कि वहाँ कॉन्वर्सेशन कैसी होती है, अगर वो वैल्यूएबल नहीं है तो छोड़ दो, फाइंड नेक्स्ट, टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा, अगेन इट्स एन एक्सपेरिमेंटेशन गेम, आप ये मत बोलोगे आप 5 ग्रुप ज्वाइन किए थे सब बकवास, ऐसा नहीं होता है, राइट, ठीक है, तो कोई ना कोई तो ढंग का मिल जाएगा, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल टुडे आर लिविंग इन सोसाइटी एंड अपार्टमेंट्स एंड ऑल, सो आपका एक सोसाइटी का ग्रुप भी होता है, उसमें आपको हर टाइप का प्रोफेशनल मिल जाएगा, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, नाउ बिकॉज दे लिव इन योर सोसाइटी इधर यू विल गेट गुड डिस्काउंट्स, राइट, या फिर आप उनके साथ एक स्मॉल सर्कल बना लो ना मीटअप्स का, कि यार सारी फैमिलीज को जरूरत है ये सब चीजों की, तो हाउ डू वी ग्रो, सो अभी कल मैं अपने ही सोसाइटी के ग्रुप में देख रहा था, दे आर फाइटिंग अराउंड कि RWA कौन बनाएगा, कौन दादा है सोसाइटी का, ये वो, मैंने कहा 350 फैमिलीज हैं, rather than thinking of कि यहाँ पे बच्चों का डेवलपमेंट क्या होगा, rather than कि ये सोसाइटी फाइनेंशियली ग्रो कैसे करेगी, आप लोग इतनी बेवकूफों जैसी फाइट में क्यों फंसे हुए हो, राइट, एंड मुझे पता है इफ आई गो अहेड एंड स्टार्ट दीस कन्वर्सेशंस विद माय एंटायर सोसाइटी, आई विल एंड अप विनिंग दैट RWA इलेक्शन, पर मेरे टाइम नहीं है, करेक्ट, बट यस, अब मुझे ये एटलीस्ट मैंने ये सोच लिया है दैट आई स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन द ग्रुप एटलीस्ट, तो जो लोग सेंसिबल होंगे ना वो बाहर निकल आएंगे, मुझे पता लग जाएगा मुझे बात किससे करनी है, करेक्ट, राइट, सो इन एवरी कम्युनिटी इफ यू स्टार्ट टॉकिंग यू विल फाइंड सर्टेन पीपल, सो मुझे ऐसा लगता है फिर लॉजिक और इसको एक स्पेस में लाओ, सो किसी ने कहा है कभी भी कुछ नया आपके सामने प्रेजेंट हो तो उसके 2 चीजें होंगी, either you will believe in it that blindly and don't ask any questions, right, एक तो ये होता है, और दूसरा कहते हैं नहीं मैं तो बिलीव ही नहीं करता, ये बिल्कुल बकवास है, टोटल स्केप्टिसिज्म, कहती है दोनों ही चीजें गलत हैं, बिलीव उतना करो कि स्टार्ट कर सको उससे बात करना, एंड हैव योर क्वेश्चंस टू गो डीपर, सो दैट आपको ऐसा ना हो कि आपको 10 साल बाद पता लगे कुछ गड़बड़ हो गई, राइट, एंड स्केप्टिसिज्म उतना ही रखो कि क्वेश्चन अच्छे पूछ सको, राइट, तो गेट बंद मत करो, क्योंकि दुनिया में जो भी है तो सही, राइट, बात है, एक टाइम को किसी ने नहीं सोचा था कि रॉकेट ऊपर जाएगा और वापस पकड़ लेंगे, एलॉन मस्क ने 40 माले का बिल्डिंग के साइज का रॉकेट ऐसे पकड़ लिया हवा में, बिकॉज ही बिलीव्स इन दैट, राइट, अब उसने दिखा दिया तो सब लोग कर लेंगे, पहले कोई नहीं मान रहा था उसकी बात को कि रॉकेट वापस लैंड कर जाएगा और वो कॉस्ट 1/3 बच जाएगा, नहीं मान रहा था, वो बंदा मार्स पे जाके मानेगा, he says its only mission he has is go to Mars, right, and वो वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी लेके जाएगा, ये करेगा वो करेगा, so जो एक्सेंट्रिसिज्म दिखता है ना हमें, this is very extreme, right, but yes, एंड लोग वो भी हैं, अभी एक फाउंडर हमने कंपनी बेचा $945 million का, उसके बाद वो डिप्रेस्ड है, अब मैं क्या करूँ, वाह, ऐसे भी लोग हैं, हाँ ऐसे भी लोग हैं, okay. क्योंकि देखो ना वो काम कर रहा था, वो रोज को प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था टेक वर्ल्ड में, अब सडनली वो कंपनी उसने बेच दी, उसके पास काम नहीं है, that's a very different kind of a problem statement I would say, right, पैसा बहुत है, $945 million है, बट अब मैं क्या करूं इसका मुझे पता नहीं, तो लाइफ में ना ये इमोशनल लॉजिक का फाइट कभी खत्म नहीं होने वाला, दैट्स व्हाई यू नीड पीपल हु कैन कीप यू बैलेंस्ड, पीपल हु आर बैलेंस्ड, सो लोग कहते हैं ना बैलेंस्ड लाइफ, I say a balanced human being is first. लाइफ तो बैलेंस कभी नहीं होने वाली, है ना, अब मैं यहाँ से निकलूं, आज हमने प्लान तो कुछ और किया था, अभी तक तो मुझे कहीं और होना चाहिए था, है ना, वहां और आधे घंटे बाद पहुंचूंगा, बट मैंने बीच में उतना गैप रखा हुआ है कि वो काम सारे हो जाएंगे, करेक्ट, राइट, अगर मैं वो बीच में गैप ही ना रखूं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है ये 12 इंच का डिस्टेंस बहुत लंबा हो जाता है कभी कभी कवर करना, सो कवर इट ग्रेसफुली, कवर इट विद अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस, आई थिंक कॉन्वर्सेशंस, प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशंस विद राइट लॉजिकल क्वेश्चंस विद इमोशंस, बिकॉज इमोशन से क्या होता है, जब चैलेंजेस आते हैं ना तो आप इमोशन ड्रिवन हो जाते हो, राइट, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको अगर मैं बोलूं कि आपको रोज 16 घंटे काम करना है तो आप नहीं कर पाओगे, आप कहोगे पागल है क्या, ये तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, बट अगर आपका कोई फैमिली मेंबर आईसीयू में एडमिट है तो आप 16 दिन 24 घंटे भी जागोगे और आपको कोई थकान नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, राइट, यू विल मैनेज एवरीथिंग, क्या हुआ, सो आई थिंक हम ना फिजिकल पावर पे काम करते हैं, हमें इमोशनल को पावर बनाना है और लॉजिक को स्ट्रेटजी बनाना है, गाइड मैप, अगर ये दोनों फिट हो जाते हैं आपस में बहुत प्यारा काम होता है,
फिर आप गिव अप नहीं मारते हो चैलेंजेस के फेस में, Yes. फिर आप याद करते हो दोबारा. एंड आई थिंक इन चीजों के लिए अगर आपको देखना है तो दुनिया जान की डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो कि रियल लाइफ बेसिस है, राइट. यू सी देम, यू विल फाइंड आउट व्हेन पीपल वांटेड टू गिव अप एंड व्हेन दे अगेन फाउंड आउट द लॉजिक एंड द इमोशन इन बिटवीन. जैसे दशरथ मांझी की कहानी है, पहाड़ तोड़ दिया पूरा, एक बंदे ने पूरा पहाड़ काट दिया. लॉजिकल तो नहीं है, लॉजिकल था. इमोशनल है कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी, किसी और की नहीं होनी चाहिए. तो जितने स्टार्टअप्स ऐसे लॉजिक्स पे बेस्ड है ना, ऐसे इमोशंस पे, वो ज्यादा सक्सेसफुल है. आप हमेशा देखना, राइट. दे आर बेस्ड ऑन समथिंग लाइक दैट एंड दे आर मोर सस्टेनेबल एज अ कंपनीज. तो अगर आप उस मोड में जाओगे तो मेरे लिए वो रहता है कि यार मैं खुद को फ्री कर पाया हूँ. इफ आई कैन फ्री 20 more people in this year every year, I'll be very happy. जैसे कल मैंने किसी से अपने वेबिनार में पूछा, अच्छा ठीक है, अगर 2 लाख रुपए महीने एक्स्ट्रा कमाओगे तो क्या करोगे? व्हाट इज योर फर्स्ट एक्सपेंस? तो पहले सवाल जवाब पता क्या आता है? कि मैं अपने डिवोर्स केस से छुटकारा पा लूंगी. Now, non-earning women when enter into divorce case, it's a nightmare for them. It's a nightmare, yes. And सालों खराब हो जाते हैं, sadly it's happening, yeah. right? And sadly it's happening every single day, right? I'm not blaming the men, but yes, when you are not equally financially standing to fight that case, and when the child is also in between for the custody, it's a nightmare. I have seen people in very bad states. सालों खराब हो जाते हैं उनकी जिंदगी के, right? Yeah. सो आई थिंक वो जो होता है ना कि पैसा लेना है पति से, या पति को वाइफ पे गुस्सा निकालना है, उसे कस्टडी लेना है बच्चे का, वो सब इमोशन ड्रिवन है, वो लॉजिक नहीं है उस टाइम पे. अगर लॉजिक होता तो आदमी सोचता ना यार भाई इसको छोड़, पैसा तो और कमा लूं. सही बात. लॉजिक तो यही बोलता है. उस टाइम पे लॉजिक की जरूरत है, उस टाइम इमोशन से बाहर निकलना पड़ेगा. समटाइम्स इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, नॉट अ लॉजिक प्रॉब्लम. तो आई थिंक moving on faster with faster experiments is a way to grow in life. नहीं तो AI ग्रो करके फिर आपको ओवरपावर तो कर ही लेगा. AI is learning. AI is learning. It's learning every single second. Yes. Not even minute की, एक day की बात है, seconds में learn कर रहा हूँ बहुत सारी चीजें. So yeah, thank you so much, yeah, Saurabh. Thank you so much.